Good evening, members. Myself, CA Raj Chawla, welcome you all in this today webinar on Section 68 and Section 69 of the Income Tax Act 1961. Today, we are very honored to have our guest speaker, CA Amit Kumar Gupta ji, a very prominent speaker on income tax. Welcome, Gupta ji. Thank We you, sir. also Thank you. welcome our guest of honor, CA Dinesh Kumar Khandelwal ji. Welcome, Khandelwal ji. I also welcome the course moderator CA Sunil Garg, my friend. Welcome Sunil Garg ji. So friends, today we will cover discussion on cash credit, unexplained income, unexplained money, नमस्कार राज चावला and जी discussion on unexplained expenditure and amount borrowed or repaid under Section 68. So now I request CA Sunil Garg to please give brief about our this webinar. Sunil ji, please. Thank you, Rajji. I welcome our elder brother, Shri Dinesh Khandelwal ji, who is the guest of honor today, sir. Thank you very much for accepting our invitation to join our platform, Dinesh ji. I also welcome our guest speaker, Amit Gupta ji, very learned and very prominent speaker. And friends, he has a YouTube channel, and probably I am a regularly I follow that YouTube channel. And Amit ji always gives the latest updates on the decisions by various high courts and ITAT with detailed analysis. So I will appeal you all to join his YouTube channel for updation of knowledge. So, friends, as you know, this is our Webathon 2 series 2.0, and this is the 11th webinar in this series. In the first series, that is decoding of income tax law, we covered all the sections of Income Tax Act, and a lot of friends has asked me where we can download those videos. So, friends, those videos are available on the YouTube channel of Dr. CA Dr. Raj Chawla. All the 40 webinars, starting from section 1 to 298, you can go there and download. And if you have any problem, or if you want any special recording, you can always call me on my WhatsApp number, or you can send a mail to me. I will send you that particular video. And secondly, in the last webinar, we have announced that we are going to start a course. Rather, it will we are developing a course for international taxation, and we are developing it in a manner that it will be a course for beginners, those who are interested to join this area of international taxation. As this area of international taxation is a very prominent area, and for the youngsters, it's a new area of practice. As the world is squeezing, transactions are worldwide now. We are connecting with the world very fast. We are getting the most FDI. We are the nation with the most FDI, and our exports this financial year has crossed 400 billion. So this area of international taxation is going to be enlarged. A wide scope is there. So we are going to start a course, probably of 12 webinars, wherein we are going to cover the various aspects of the taxation. So coming for today topic, we requested Abhijit to take this very tedious subject of section 68 and 69, friends. As you know, I think this is the most debatable section and most loved section by the assessing officer. Every time you get an order, they probably cover it within the preview of section 68. And you know, when demonetization happened since 2016, there was this section was linked with section 115 BBE, and there was a drastic change in 115 BBE, because before the amendment by the Taxation Amendment, Second Amendment Act in December 2016, the law was that 271C has been was not in the books of the statute by with effect from 1st April 2016, and when demonetization happened, it was said that you can disclose, you can have a income from undisclosed sources also, and you pay tax under section 115 BBE at the rate of 30%. And that's why, by bringing the second amendment on 15 December 2016, particularly in section 115 BBE, the tax rate was increased to 78%, 60% plus 25% surcharge, and then cess 4%, 78%. Secondly, this time, this Budget Finance Act 2022 has made a very drastic change in Section 68. As you know, in case of closely held company,
whenever we get a share application money, because there was a decision of Supreme Court of India and Lovely Export, where it was said that if we have proven the genuineness of the transactions, creditworthiness, then the addition has to be made in the hands of the share applicants, not in the hands of the company. And by Finance Act 2012, it was changed by then Honorable Finance Minister of India, Shri Pranab Mukherjee ji, and the source rule was brought in for the share application money in case of closely held company. This Finance Act 22 has gone a step ahead. Now you have to explain the source in case of loans, advances, and borrowings. And this term is very, I think, very dangerous and very draconian provision is that, because it is going to have very wide implication, as I think, Amitji. Yes. And what is the meaning of loans, advances, and borrowing, and how we can compel from to that. Please tell your source also. And surprisingly, no exception has been given, Amitji. And suppose we are getting a loan from cooperative bank or NBFC company, whether this provision will be applicable. It is to be Yes, sir. thought. We will discuss. How can you ask a bank to give the source of source? And so many NBFC companies, so many loans we are taking, home loans, finance, car loans, and whether this provision will be applicable or not. Amitji is the best person to explain this. So with these words, I hope this seminar, this webinar is going to be a very interactive webinar, because only we are going to cover two sections, 68 and 69. And with these words, I hand over the mic to Bhavya ji. Thank you, friends. Thank you, audience, for joining us. Okay. Thank you, Sunil sir. I think we lost connection with our guest of honor, CA Dinesh Agarwal ji. He's not present at the panel right now. So you introduce Amit ji, and whenever he joins, we can take a break of 2-3 minutes. Okay. Yes. So I would like to welcome our guest speakers, Mr. Amit Kumar Gupta ji. Amit ji is an advocate and proprietor of Amit R. and Gupta Associates Chartered Accountants and a renowned lawyer. He has practiced as chartered accountant for over a decade and having diverse industry experience in all areas of income tax litigation, taxation and audits, and now he has started practicing as an advocate of High Court. His strengths lies in his deep analysis of facts in each case that enables him to handle the income tax cases of any size and complexity. He is a member of All India Federation of Tax Practitioners. He is also a member of ITAT Bar Council. He represents a diverse client base before first level appeals and second level appeals in income tax. Over the years, he had built a reputation by providing high quality work, a positive outlook, and the highest standards of service and ethics. I welcome you, sir, and request to start your technical deliberations. Thank you, Malviya. First of all, I congratulate CA Raj Chawla ji on being elected as a member of Central Council. Thank you, Sunil ji. And I welcome all my participants who have joined for this wonderful session on Section 68 and 69. सुनील जी, मेरा परिचय अभी राज चावला जी से कुछ दिन पहले ही हुआ और अभी मैंने उनको मेरिडियन होटल के अंदर पहली बार बोलते हुए सुना, तो इट वाज रियली ए वेरी डिलाइटफुल स्पीच विच हैज बीन गिवन बाय सीए राज चावला जी. जिस तरीके से उन्होंने प्रोफेशन के लिए काम किया है आज तक, मेरे ऑफिस में पिछले 4 या 5 साल से सुनील जी एक प्रचलन है कि राज चावला जी की जो मेल आती है उसका प्रिंट आउट निकाला जाता है और मैं उसको डेली पढ़ता हूं और उस पर टिक लगा करके वो मेरी फाइल में लगता है. तो 1 लाख लोगों को राज चावला जी डेली वो मेल भेजते हैं और वो इतनी एक कंप्रेहेंसिव मेल होती है कि यदि आपने उस मेल को भी पढ़ लिया तो आप एक मोटे तौर पे अपने प्रोफेशन से अपडेट हो जाते हैं. तो इट इज रियली ए सर्विस विच वाज ऑन ए रेगुलर बेसिस बाय सीए राज चावला जी. Thank you, CA Raj Chawla ji and Sunil ji, for giving me this opportunity. Today, the topic which has been given to me is Section 68 and Section 69. These both the sections are most debatable section in the Income Tax Act. जितना भी litigation
होता है इनकम टैक्स के अंदर, जो कि एक बिजनेसमैन से कंसर्न होता है, वो बेसिकली सेक्शन 68 और सेक्शन 69 पर होता है। इन दोनों सेक्शंस को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ चीजें जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हम डेली अपनी लिटिगेशन के अंदर देखते हैं, उनको मैं डिस्कस करूंगा 10-15 मिनट, सुनील जी, विद योर काइंड परमिशन, सो दैट हम सेक्शन 68 और सेक्शन 69 Amit ji, can I chip in? है Amit ji, जा सकते हैं। Yes, our Sunil ji. guest of honor Yes, has joined. Yes, they were correct with If the you allow problem. Amit I ji, am able to तो listen you. we can have a word. Yeah. Thank you, Amit Sunil ji, ji. हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर आ गए हैं, तो मैं चाहूंगा कि 2 मिनट जरा माविया जी let introduce माविया जी, please introduce our guest of honor today. I would like to welcome among us a senior fellow member Mr. C.A. Dinesh Kumar Khandelwal ji. He is a commerce graduate from Agra University with first division, and then he qualified chartered accountancy in May 1988. After that, he started his practice in 1989. He has vast experience in income tax matters and auditing. I welcome you, sir, and request you to say a few words on today's topic. Thank you, Malviya ji. First of all, I would like to thank CA Raj Chawla ji, founder of the NICAI, Shri Sunil Garg ji, course moderator, CA Shri Asim Chawla ji, course mentor, and Shri Amit Gupta ji, who is our guest speaker. Dear friends, first of all, we should understand what is the difference between section 68 and section 69. Section 68 deals the situation where any sum is found credited in the books of account of the SSE, and SSE is not able to offer the explanations up to the satisfaction of the AO, and AO does not satisfy about his explanations, then his income will be added in the income of the SSE. And section 69 deals with unexplained investments, the situation where SSE made the investments which are not recorded in the books of accounts of the SSE. And AO, if asked anything, he does not offer any explanations about the unexplained investment. It will be deemed as his income. Secondly, section 69A, SSE is found to be the owner of any money, bullion, jewelry, or any valuable articles, and SSE does not offer any explanation or to the satisfaction of the AO, then it will be treated as his income. Like that, section 69B, any investment, money, bullion, jewelry, or any precious amount, etc., is fully not disclosed in his books of accounts. Disclosed but not fully disclosed, undervalue disclosed. Then this difference will be added in his income. And section 69C, unexplained expenditures. If SSE incurs any expenditure and does not offer any explanation of the expenditure, that will be treated. Now this Finance Act, latest Finance Act, has amended section 69 in very serious manner. Now, if we take any loan, any borrowings, and credit any liabilities in our books of accounts, then we will have to find out the source of the funds. हमने जो पैसा लिया है, हमने तो लिया ही है, लेकिन जिससे लिया है उसके पास ये कहां से आया, इसकी हमारे को पूरी हमारे पास इंफॉर्मेशन, जानकारी हमारे को रखना। दिस इज वेरी डिफिकल्ट। ये आज का सबसे बर्निंग, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सोर्स ऑफ द फंड्स को किस तरीके से हम लोग अपने पास इंफॉर्मेशन को रख सकते हैं और असेसिंग अथॉरिटीज को सेटिस्फाई कर सकते हैं। डियर, अब इसके बाद आगे मैं माइक देना चाहूंगा अपने गेस्ट स्पीकर श्री अमित गुप्ता जी को, तो इसमें डिटेल इन्वेस्टमेंट डिस्कशन करेंगे और बताएंगे। Thank you, sir. Amit ji, please. Thank you, sir. Before starting the deliberation on section 68 and 69, I would like to spend 10-15 minutes on the basic principles of income tax. First of all, जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है वो दो चीजों पर आधारित है। एक सेक्शन 4 जो कि रियल इनकम की बात करता है, और एक हमारा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 265, जो कि कहता है कि नो टैक्स कैन बी imposed and collected without the authority of law.
जो सेक्शन 4 है वो रियल इनकम पर है। रियल इनकम का मतलब यह है कि यदि किसी एसएससी को वास्तव के अंदर इनकम हुई है तभी उसको उसके ऊपर टैक्स देना है, अदरवाइज उसको टैक्स नहीं देना। मालूम बहुत डिस्टर्बेंस है कहीं पे ना। Sir, is it fine now? हाँ, यस। लेकिन हमारे इनकम टैक्स के अंदर धीरे धीरे जो डीमिंग प्रोविजंस का एक चलन है, क्योंकि सेक्शन 68 और 69 दोनों ही डीमिंग प्रोविजंस हैं। मैंने एक बार एक इनकम टैक्स एक्ट की पूरी वर्ड की फाइल डाउनलोड करी और उसके अंदर डीमिंग वर्ड को सर्च किया तो उसके अंदर 658 टाइम्स डीमिंग वर्ड यूज किया गया है। अकॉर्डिंग टू माय प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, जहां पे भी डिपार्टमेंट अपने ऑफिसर्स की काबिलियत पे क्वेश्चन करता है तो वहां पे वो जो एसएससी के ऊपर बर्डन नहीं होना चाहिए, जो ऑफिसर्स के ऊपर बर्डन था, वो डीमिंग वर्ड लगा करके वो सारा का सारा बर्डन जो है वो एसएससी के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हो जो भी एसएससी के फेवर में आते हैं, चाहे वो लवली एक्सपोर्ट का केस था, और भी इस बार भी बजट आया 2022 का, उसके अंदर भी देखा गया है कि सबसे ज्यादा जो अमेंडमेंट्स लाई गई हैं वहां पे बकायदा जो भी कोर्ट के डिसीजंस हैं उनको मेंशन करते हुए अमेंडमेंट्स लाई गई हैं। तो ये जो एक पैराडिग्म शिफ्ट है कि जो एओ का बर्डन है वो भी एक एसएससी पर जो शिफ्ट किया जा रहा है, ये एक बहुत एसएससी के लिए बहुत पेनफुल है, क्योंकि एक लॉ का एक जनरल प्रिंसिपल है कि आप एसएससी से वो काम नहीं करा सकते जो इम्पॉसिबल है। जिस तरीके से 2022 के अंदर जो एक अमेंडमेंट है कि आपको लोन का भी सोर्स बताना है, इससे पहले 2012 में सेक्शन 68 के साथ छेड़छाड़ की थी और जब ये कहा था कि साहब जो आपकी शेयर कैपिटल है उसके अंदर भी जो आपका शेयर एप्लीकेंट है अब आपको उसका भी सोर्स बताना है। तो अब डिपार्टमेंट को ये लगा कि अब शेयर कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं हो रही बुक्स के अंदर, तो अब लोन इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, लोग अपना शेयर कैपिटल ना इशू करके लोन्स लेते हैं, चाहे वो अपने रिश्तेदार हो चाहे वो एनबीएफसी कंपनी हो। तो ये एक ऐसा चलन है जो इनकम टैक्स में शुरू हो चुका है कि जहां पे एक एसएससी को कॉर्नर कर दिया जाता है, उसकी इतनी एडिशन होती है, फिर उसको अपील में जाने के लिए जब उसके बैंक अकाउंट अटैच होते हैं, प्रॉपर्टी अटैच होती है, तो धीरे 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 बाद तक उसका इतना खून सूख चुका होता है कि वो उसको विवाद से विश्वास स्कीम में ले जाते हैं और वहां पे उससे जो है वो एटलीस्ट टैक्स अमाउंट को, तो इट इज ए सिस्टमैटिक अप्रोच टू सक द ब्लड ऑफ द एसएससी। और कहीं ना कहीं इसमें पूरे प्रोफेशनल्स का भी एक हरासमेंट इसलिए है क्योंकि हम जितने भी अपने सबमिशंस देते हैं, पहले तो जब जाकर के अपनी बात समझानी होती थी तो कम से कम ये तसल्ली रहती थी दिनेश जी कि हम अपनी बात तो कहे हैं, लेकिन अब तो फेसलेस के अंदर आप कितना भी आप रिप्लाई सबमिट करें या आजकल पर्सनल हियरिंग हो भी रही है तो उसके अंदर कोई भी एसएससी की बात को बस खाली पूरा सुनते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि डिसीजन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ। सो व्हाट इज लॉ? एटलीस्ट लॉ इज नॉट नोन एट द अदर साइड। एक इनकम टैक्स के अंदर एक बात कही जाती थी बहुत सारे डिसीजंस के अंदर कि जो असेसिंग ऑफिसर है उसको ही हैज टू लुक एट द ट्रांजैक्शन एंड नॉट थ्रू द ट्रांजैक्शन। उसको ट्रांजैक्शन देखना है, उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि एक आदमी के ऊपर इतना बर्डन डाला जाएगा कि मैंने किसी से 1 लाख रुपए लोन लिया और मैं उसके पैसे आज की डेट में नहीं दे रहा, तो उसको 138 में केस करने की जरूरत नहीं है। वो मेरे साथ कॉपरेट ना करे, मुझे पेपर ना दे, या इनकम टैक्स के इन्वेस्टिगेशन में जाके स्टेटमेंट दे आए कि साहब इसने तो मुझसे कैश देकर के ये लोन लिया था, तो जितना पैसा मैंने उसका देना था उतना तो उससे 2 या 3 गुना तो डिपार्टमेंट मुझसे ले लेगा। क्योंकि जब भी हम ऐसी चीजें आती हैं कि किसी की स्टेटमेंट के बेसिस पर, चाहे वो बोगस परचेज के केस में एडिशंस हो चाहे लोन्स के केस में हो, तो डिपार्टमेंट एक बहुत इराटिक अप्रोच लेकर के उन स्टेटमेंट्स के बेसिस पर सारी एडिशन करता है। कोई क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं है एसएससी के लिए, कहीं पे भी उनको कन्फ्रंट कराने का वो नहीं है, कहीं पे भी पूरी असेसमेंट बीत जाती है, 10-10 बार हम अपनी बातें लिख के छोड़ देते हैं लेकिन हमको इवन स्टेटमेंट की कॉपी तक भी नहीं मिलती। बहरहाल इसी के बीच में हम सेक्शन 68 को जब डिस्कस करेंगे तो इसके अंदर एक चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार हमें लगता है कि जो सेक्शन 115 BBE है इसके अंदर 60% टैक्स है, तो लगता है कि
ये बहुत ज्यादा टैक्स रेट है, कि इतना टैक्स रेट कैसे है। तो इसके लिए एक जनरल जो इनकम टैक्स का कानून है वो ये है कि देयर इज नो इक्विटी इन टैक्स। जो टैक्स रेट है वो यदि गवर्नमेंट चाहे तो वो 100% से भी ज्यादा टैक्स रेट रख सकती है। तो जो एज पर एज द टैक्स रेट का कंसर्न है वो एक एसएससी के लिए, एसएससी ये नहीं कह सकता कि साहब कि मैंने 100 रुपए कमाए और आपने इस पे मुझसे 60 रुपए तो टैक्स के ले लिए, 25% पेनल्टी ले ली। और इसके अंदर एक जो इंपॉर्टेंट बात ये है वो ये है कि जब भी इनकम टैक्स में जो प्रोसीजर्स असेसिंग ऑफिसर्स को फॉलो करने हैं, एक प्रिजम्पशन है लॉ के अंदर कि ये माना जाएगा कि जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो असेसिंग अथॉरिटीज ने फॉलो कर लिए हैं। ये असेसी की जिम्मेदारी है ये बताना कि साहब मेरी असेसमेंट के दौरान या मेरी अपील के अंदर ये प्रोसीजर्स जो हैं फॉलो नहीं किए गए। सो इट इज आल्सो ए वेरी हैवी बर्डन ऑन द असेसी, क्योंकि क्या प्रोसीजर्स हैं ये तो असेसी से ज्यादा डिपार्टमेंट को नॉलेज होती है। तो ये बर्डन भी एक तरीके से एक असेसी के ऊपर ही डाला गया है कि आपको ये बताना है कि डिपार्टमेंट ने कौन से प्रोसीजर्स जो हैं वो फॉलो नहीं किए। एक टैक्स के बारे में एक जनरल चीज ये है कि ए टैक्स इज ए पेमेंट फॉर रेजिंग जनरल रेवेन्यू। मतलब कोई एसएससी ये नहीं कह सकता कि साहब मैं टैक्स पे कर रहा हूं तो मेरे जो टैक्स का बेनिफिट है वो तो एक जनरल पब्लिक को जाता है। तो इट इज ए बर्डन विच इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट एंड इट हैज टू बी borne by every SSC. Now I come to section 68. जो सेक्शन 68 है उसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। इट इज ए वेरी ओल्ड सेक्शन। जब भी सेक्शन 68 के बारे में बात होती है तो एक सेक्शन 68 जो है वो मोटे तौर पे जो ये कहता है कि यदि किसी एसएससी की बुक्स में कोई क्रेडिट पाया गया तो सबसे पहले डिपार्टमेंट ने ये अलर्ट करना है एसएससी को कि आपकी बुक्स में ये क्रेडिट है। पहला बर्डन एक तरह से डिपार्टमेंट पे हुआ और फिर ये बर्डन बहुत एज ए इन ए वेरी क्विक टाइम जो है वो एसएससी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है और एसएससी को वो जो एसएससी की बुक्स में क्रेडिट हुआ है उसकी आइडेंटिटी, जेन्युइननेस और क्रेडिट वर्थीनेस, ये तीन टर्म्स हैं जो कि हम जब भी कोई सेक्शन 68 का मैटर होता है तो ये तीन वर्ड्स जो हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। जहां तक कि आइडेंटिटी की बात है इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी क्या है कि हमें यदि सपोज करो मैंने किसी इंडिविजुअल से ट्रांजैक्शन की है देन आई हैव टू शो हिज पैन नंबर, हिज आधार नंबर और एनी अदर आईडी। यदि कोई कंपनी है तो कंपनी के केस में मैं उसका सिन नंबर दे दूंगा तो कोई भी जाकर के उसको एमसीए की साइट से उसकी आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि जेन्युइननेस, कि जेन्युइननेस से सेक्शन 68 का क्या लेना देना है, जेन्युइननेस से क्या मतलब है। जो जेन्युइननेस है वो बेसिकली डिपार्टमेंट का ये मानना है कि यदि कोई ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल से हुई है तो वो जेन्युइन है, लेकिन जितने भी डिसीजंस होते हैं तो वहां पे जहां पे भी हमारी बात को डिपार्टमेंट नहीं मानता तो उसके बारे में वो कहते हैं कि खाली बैंक से एंट्री हुई है इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो जेन्युइन है। तो मेरा ये क्वेश्चन ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी कोई ट्रांजैक्शन कैश में हुई होती है और डिपार्टमेंट ये कहता है कि साहब आपने ये कैश में किया है इसलिए आपकी ये ट्रांजैक्शन जो है वो जेन्युइन नहीं है। तो यहां पे भी एक तरीके से जो एसएससी के साथ है वो डबल स्टैंडर्ड बात की जाती है। जब आप ये कहते हैं कि मेरी बैंकिंग ट्रांजैक्शन है और मैं खाली बैंकिंग ट्रांजैक्शन होने की वजह से आपको की ट्रांजैक्शन को जेन्युइन नहीं कह सकता, इसी तरीके से इसका रिवर्स भी होना चाहिए कि यदि मैंने कोई चीज कैश में खरीदी है या कोई ट्रांजैक्शन कैश में की है तो आप उसके लिए मुझसे रेलिवेंट सेक्शन में पेनल्टी लें, लेकिन खाली मैंने कोई ट्रांजैक्शन कैश में कर दिया तो इससे वो मेरी ट्रांजैक्शन जो है वो नॉन जेन्युइन नहीं हो जाती। तो जो डिपार्टमेंट एक अपनी प्ली लेता है कि ए ट्रांजैक्शन विच इज डन through banking channel does not mean that it is a genuine. The reverse also applies, that if assessee has done any transaction in cash, apparently it doesn't mean that my transaction is not genuine. Now the third question, which is very important, the question comes the credit worthiness. अब credit worthiness से किस चीज का एक
हमको किस तरीके से क्रेडिट वर्थिनेस पे असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई करना है। सपोज करो कि मैंने किसी एक आदमी से 10 लाख रुपए का लोन लिया, यदि उसकी बैलेंस शीट का टोटल खाली 1 लाख रुपए है, उसकी नेटवर्थ, उसकी कैपिटल जो है वो खाली 1 लाख रुपए है, बैलेंस शीट का टोटल हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन उसने वो पैसा जो है वो बैंक से लोन लेकर के मुझे दिया, तो उसकी क्रेडिट वर्थिनेस थी, इसलिए उसको बैंक ने लोन दिया। तो चाहे उसकी नेटवर्थ 1 लाख रुपए है, लेकिन यदि उसने ये पैसा लोन लेकर के दिया है, तो डिपार्टमेंट सेक्शन 68 पर इन माय हम्बल सजेशन वो मेरा एडिशन नहीं कर सकता। जो ट्रांजैक्शन है क्रेडिट वर्थिनेस, मुझे सारी ट्रांजैक्शन के लिए उसकी क्रेडिट वर्थिनेस नहीं देखनी। जो पैसा उसने मुझे दिया, जिस ट्रांजैक्शन के लिए मैं असेसमेंट में हूं या अपील में हूं, यदि वो ट्रांजैक्शन जो है वो पीछे से क्रेडिट वर्थिनेस उसकी क्लियर हो जाती है, चाहे उसने वो लोन लेकर के दी हो, तब भी वो ट्रांजैक्शन जो है वो उस ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में क्रेडिट वर्थिनेस मानी जाएगी। सो जब भी क्रेडिट वर्थिनेस देखनी है, तो हमको खाली ये नहीं देखना कि मैंने सपोज करो मेरी कंपनी ने किसी से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया और उसने मुझे कहीं से वो पैसा अरेंज करके दिया, तो और उसके बैलेंस शीट में लॉस आ रहे हैं, तो खाली वो लॉस हो जाने से ये प्रूव नहीं होता, क्योंकि एक आदमी को लोन भी तभी मिलेगा जब उसकी क्रेडिट वर्थिनेस है। सो these three elements are very important in dealing with section 68. The first is identity of the person with whom we are dealing, the genuineness of the transaction. If the transaction is basically with the banking channel, then the transaction is deemed to be genuine. And the third thing is credit worthiness. एक जेन्युइननेस में एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन के बारे में एक केस में डिसाइड हुआ, जहां पे जज साहब ने इवन यहां तक डिफरेंशिएट किया कि यदि आपको बैंक में क्रेडिट आया और वो क्रेडिट किसी डिमांड ड्राफ्ट से है या पे ऑर्डर से है या इसके अपोजिट चेक से है, तो ज्यादा जेन्युइननेस जो चेक होती है वो चेक से होती है, क्योंकि पे ऑर्डर हो सकता है कि 2 महीने पुराना हो, लेकिन चेक के ऊपर जो है वो डेट होती है। और जो इवन उस केस के अंदर कोर्ट ने एक पे ऑर्डर और एक चेक को भी डिफरेंशिएट किया, क्योंकि आज का तो टाइम खैर पे ऑर्डर और चेक का चला गया, हर चीज IMPS से चाहे NEFT से या RTGS से होती है। तो ये एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है कि जहां पे हमको अपनी ट्रांजैक्शन को प्रूव करना है, और जितने भी जजमेंट्स हैं वो एक चीज के ऊपर जो तवज्जो देते हैं वो ये कहते हैं कि आपको हर केस के अंदर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस जो है वो डिफरेंट है, हमको पूरे मैटर को एज ए होल देखना है। जब भी हमारी असेसमेंट हो तो हमको उस वक्त मैक्सिमम अपनी डॉक्यूमेंटेशन करनी है। फॉर एग्जांपल, यदि कोई लोन की ट्रांजैक्शन है तो हमको लोन के ट्रांजैक्शन के लिए हमारे पास यदि लोन का एग्रीमेंट है तो हम लोन का एग्रीमेंट दें, जिससे हमने लोन लिया है उसकी हमारे पास, जिस बैंक से हमें लोन आया उसका बैंक स्टेटमेंट हमारे पास है, उसका ITR की कॉपी हमारे पास है, बैलेंस शीट है। तो ये सारी चीजें हमको रेडिली जो है अपने साथ रखनी चाहिए, ताकि जब कभी भी असेसमेंट हो तो वी शुड नॉट वेट फॉर द असेसिंग ऑफिसर टू गिव दिस डिटेल्स, क्योंकि जितनी जल्दी हम दे देंगे असेसी का ऑनर्स जो है वहां पे कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद नाउ द ड्यूटी ऑफ द डिपार्टमेंट विल स्टार्ट कि वो जो हमने डॉक्यूमेंटेशन दी है उस डॉक्यूमेंटेशन वो ऑथेंटिक है या नहीं, उनको उसके आगे इंक्वायरी करनी है। उसके बाद डिपार्टमेंट को 133 सबसेक्शन 6 में जाना है, 131 में जाना है। तो हमारे सबसे ज्यादा जरूरी एसएससी के लिए ये है कि एसएससी जो है वो जो भी उसके बुक्स में क्रेडिट आया उस बुक्स के अंदर उस क्रेडिट को वो एक्सप्लेन करे, क्योंकि जैसे ही सेक्शन असेसमेंट लगती है तो इन ए वेरी क्विक मूवमेंट ऑफ टाइम जो बर्डन है वो एसएससी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, और एसएससी को उस ट्रांजैक्शन के लिए मैक्सिमम डॉक्यूमेंटेशन जो है वो देनी है। नाउ सेक्शन 68 के अंदर जो सबसे जो ओपनिंग वर्ड्स हैं वो ये है कि यदि कोई क्रेडिट एसएससी की बुक्स में क्रेडिट पाया गया, तो नाउ वी हैव टू रीड द सेक्शन 68 इन ए वेरी लिटरल सेंस। द वर्ड बुक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बुक्स हैं उसके अंदर एक मायावती का बहुत इंपॉर्टेंट केस था, जिसके अंदर कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि मायावती एक बहुत ही रेपुटेटेड मिनिस्टर हैं,
उनके यहाँ रेड हुई थी तो उनके बैंक में बहुत सारे क्रेडिट पाए गए। तो उनकी मेन दलील ये थी कि जो पासबुक है वो तो मेरी बुक ही नहीं है। बुक्स वो हैं जो एसएससी अपने लिए मेंटेन करता है, कैश बुक है, लेजर है, चाहे वो बुक्स हम मैनुअली मेंटेन करें चाहे वो टैली के अंदर करें। तो उस केस के अंदर कोर्ट ने एक बहुत बढ़िया जजमेंट ये दिया कि जो पासबुक है वो बेसिकली बैंक के हाथ में है, बैंक ने मेंटेन करनी है। और एसएससी और बैंक का जो रिलेशन है वो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप नहीं है कि बैंक जो है वो एसएससी का पैसा एज एन एजेंट रख रहा हो। उनके बीच में जो रिलेशन है वो डेटर क्रेडिटर का है। जिस तरीके से यदि कोई मेरा क्रेडिटर है वो अपनी बुक्स में मेरा कुछ भी लिखता रहे तो आप उसकी वजह से मेरा एडिशन नहीं कर सकते। तो उस केस के अंदर जो मायावती का जो इंपॉर्टेंट केस है उसके अंदर ये डिसाइड हुआ कि जो इवन बैंक की स्टेटमेंट है वो एसएससी का बुक्स का पार्ट नहीं है। तो खाली मेरे बैंक्स के अंदर बहुत सारे क्रेडिट्स हैं, आप उनके बेसिस पर मेरा एडिशन जो है वो नहीं कर सकते। उसका रीजन दिया कोर्ट ने ये कहा कि जो बैंकर और एसएससी के बीच में जो रिलेशन है वो डेटर क्रेडिटर का रिलेशन है, वो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप नहीं है। जो बैंक है वो एसएससी का जो क्लाइंट होता है उसका एक बैंक अकाउंट मेंटेन करता है और वो अपने लिए उसके अंदर ट्रांजैक्शन करता है। जब तक वो बुक्स नहीं मानी जाएंगी, जब तक एसएससी अपनी किताबों के अंदर, अपने कैश बुक के अंदर, अपनी बैंक बुक के अंदर उसकी एंट्री नहीं करेगा। तो इस केस में ये डिसाइड किया गया कि पासबुक ऑफ द बैंक इज नॉट रिगार्डेड एज ए वैलिड अकाउंट बुक्स अंडर सेक्शन 68 और जो भी जितने भी क्रेडिटर्स उस केस में थे वो सारे के सारे एडिशन जो 68 के अंदर की गई थी वो डिलीट कर दी गई। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 के अंदर बुक्स को डिफाइन किया गया है और जो जितने भी केसेस हैं और जो सेक्शन है उनके बेसिस के अंदर बुक्स के बारे में ये बात कही गई है कि जितने भी लूज शीट्स हैं, लूज पेपर्स हैं जो कि सर्च के अंदर जनरली मिल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आदमी ने अपनी टेबल पे कोई लूज पेपर्स रखे होते हैं जिसमें उन्होंने एंट्री की हुई है, तो उनको कोर्ट्स ने बुक्स नहीं माना है। बुक्स के लिए जरूरी है कि वो बाइंड होना चाहिए, चाहे वो स्पाइरल बाइंडिंग हो चाहे वो स्पाइरल पैड हो, तभी वो बुक्स की डेफिनेशन के अंदर आएगा। लेकिन यदि कच्ची पर्चियां हैं या लूज पेपर्स पे लिखा गया है तो जितने भी कोर्ट्स के डिसीजन हैं बुक्स के ऊपर वो उस बुक्स की डेफिनेशन में नहीं आते। तो सेक्शन 68 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया वो ये है कि जब तक बुक्स नहीं होंगी और बुक्स के अंदर एंट्री नहीं पाई जाएगी, जब तक आप सेक्शन 68 के अंदर एडिशन नहीं कर सकते। यहां पे मेरा एक ऑडियंस से क्वेश्चन है कि जो सेक्शन 68 और सेक्शन 69 जो है उसके अंदर जब भी एडिशन की जाती है तो क्या कोई है जो ये बता सकता है कि ये सेक्शन 68 जो की या 69 की एडिशन है वो किस हेड में होगी? जो हमारे पांच सोर्सेज ऑफ इनकम है वो डिपार्टमेंट किस हेड के अंदर हमारी एडिशन करता है? एनीवन हु कैन आंसर इन द चैट बॉक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी एडिशन होता है तो हम 115 BBE में चले जाते हैं और वहां पे डिपार्टमेंट जो है वो 60% का टैक्स लगाता है। यहां पे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना कि जब भी सेक्शन 68 या 69 के अंदर एडिशन होता है या 69 की फैमिली में एडिशन होता है तो वो एडिशन किसी भी 5 हेड के अंदर नहीं होता, क्योंकि उन 5 हेड के अंदर एडिशन होने का मतलब है कि आपको उनको एक्सपेंसेस सेट ऑफ कराने पड़ेंगे, उनको आपको लॉस Megha ji is replying, it is from income from other sources. There is some network issues. Please be little patient.
क्या हुआ माविया? सर डिस्कनेक्ट हो गया अमित जी से, मे बी ड्यू टू सम नेटवर्क इश्यूज। हाँ माविया जी, क्या हुआ? सर डिस्कनेक्ट हो गया अमित जी से। अच्छा बुला। माविया, अमित जी ने ज्वाइन तो कर लिया, उनको लाओ ना। सर यहाँ पे शो नहीं हो रहे। नहीं तो क्यों नहीं शो हो रहे? उनसे टेलीफोन पे बात करो। यस सर। कौन से लिंक पे कर रखा है उन्होंने? हाँ मालविया हो गया ज्वाइन ना? वेलकम हो सर। गया। हाँ sorry for the interruption. So we were discussing about the books here. So the most important point is that for making the addition under section 68, the credit should be found into the books. यदि एसएससी की बुक्स के अंदर वो अमाउंट नहीं है तो आप सेक्शन 68 के अंदर एसएससी का एडिशन जो है वो नहीं कर सकते। इस केस के अंदर मायावती का बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो कि ईच एंड एवरी लिसनर शुड रीड आउट। नाउ the third important element of section 68 is that the question says that when the assessee is not able to give the explanation as to the nature and the source of the credit, कहने का तात्पर्य यह है कि जब असेसी अपनी असेसमेंट करा रहा है तो असेसी को ना केवल अपनी जो ट्रांजैक्शन है उसके सोर्स के बारे में बताना है, उसका नेचर भी बताना है। उदाहरण के तौर पर सपोज करो कि किसी एसएससी के यहाँ कोई सर्च हुई और जब उसकी असेसमेंट हो रही है तो उसने ये तो बता दिया कि ये अमाउंट कहां से आया, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहा कि ये इनकम है या मैंने लोन लिया है या शेयर कैपिटल है, वो उसका नेचर नहीं बता पा रहा। तब भी डिपार्टमेंट जो है वो सेक्शन 68 के अंदर जो है वो एसएससी को लेके जा सकता है। यदि एसएससी ये बता पाता है कि ये मेरी बिजनेस इनकम है तो फिर सेक्शन 115 बीबीई नहीं लगेगा और एसएससी के ऊपर 60% का टैक्स नहीं लगेगा, वो 68 से बाहर हो जाता है। तो इसलिए इट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द एसएससी टू एक्सप्लेन टू द असेसिंग ऑफिसर नॉट ओनली द सोर्स ऑफ द क्रेडिट इनटू हिज बुक्स बट आल्सो द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन। जब भी शेयर कैपिटल की असेसमेंट होती थी, जब भी हम शेयर क्रेडिट बुक्स में आया हुआ होता था तो उससे पहले बहुत लिटिगेशन थी उसके ऊपर कि जो असेसी को शेयर क्रेडिट आया हुआ है, असेसी का ये कहना होता था कि साहब मैंने तो, मेरी कंपनी में तो लोगों ने पैसा लगाया, और डिपार्टमेंट ये कहता था कि नहीं वो जेन्युइन कंपनीज नहीं है, फेक कंपनीज हैं और उन्होंने आप ही का कैश जो है वो सर्कुलेट किया है। तो ये मैटर जो है वो ट्रैवल करते करते सुप्रीम कोर्ट तक गया और लवली एक्सपोर्ट्स का केस जो है वो डिसाइड हुआ। लवली एक्सपोर्ट्स के अंदर
सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बैलेंस जजमेंट दिया था। ये कहा कि यदि एसएससी जो है वो अपने शेयर होल्डर्स की यदि सारी क्रेडिट वर्थिनेस को प्रूव कर देता है और ये कहता है कि उसने एसएससी ने सारी बैलेंस शीट सबमिट कर दी है, उनकी इनकम टैक्स की रिटर्न की कॉपी दे दी है, उनका एड्रेसेस दे दिया है, उनके ईमेल आईडी दे दिए हैं, तो दिस इज व्हाट द एसएससी कैन मोस्ट डू। एंड इन दैट केस इट नाउ इट इज द रोल ऑफ द डिपार्टमेंट कि वो चेक करे कि जो एसएससी ने ये जो डॉक्यूमेंटेशन दी है कि वो वैलिड है या नहीं। और यदि आपको किसी सूरत में ऐसा लगता भी है कि वो नहीं है, तो जिसने पैसा एसएससी के यहाँ लगाया है आप उसका एडिशन करें, जाके एसएससी का एडिशन ना करें। लेकिन लवली एक्सपोर्ट्स के डिसीजन के बाद बहुत सारी ऐसी एडिशंस थी जो 68 पे थी और सभी लोगों को रिलीफ मिला, इसलिए डिपार्टमेंट 2012 के अंदर एक प्रोविजन लेके आया कि जहां पे भी क्लोजली हेल्ड कंपनीज हैं और वहां पे यदि शेयर कैपिटल आई हुई है, तो ये एसएससी की ड्यूटी है कि जो उसका शेयर होल्डर है, एसएससी ये भी बताए कि वो शेयर होल्डर जो है वो पैसा कहां से लाया। तो बेसिकली कहने का तात्पर्य ये था कि वहां पे भी एसएससी के ऊपर ये बर्डन, वहां से ये इंसेप्शन शुरू हुआ कि सोर्स का सोर्स बताने का, कि शेयर कैपिटल के केस में, क्लोजली हेल्ड कंपनी के केस में, ये कंपनी को बताना है कि उसका शेयर होल्डर भी कहां से पैसे लाया। लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया गया और जो इसका लॉजिक दिया गया वो ये दिया गया कि ये क्लोजली हेल्ड कंपनी जब होती है तो क्लोजली हेल्ड कंपनी के अंदर जब भी शेयर्स खरीदे जाते हैं, अलॉट किए जाते हैं, तो वो अपने रिलेटिव्स को किए जाते हैं। और ये कहा गया कि क्योंकि ये शेयर्स एक रिलेटिव्स को अलॉट किए जाते हैं तो वो रिलेटिव्स एसएससी के जानकार होते हैं, इसलिए एसएससी जो है वो उनके बारे में बता सकता है। दिस वाज द लॉजिक विच वाज गिवन कि क्योंकि मैंने वो शेयर कैपिटल जो है वो अपने जानकारों से लिए, रिलेटिव से लिए, तो मेरे ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया गया कि साहब आप ये भी बता दो कि आप मेरे रिलेटिव्स ये पैसा कहां से लाए। तो इसके बारे में मेरा एक ये काइंड सबमिशन है ये डिपार्टमेंट को कि सपोज करो मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में किसी दूसरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने कैपिटल लगाई। उस वक्त मैं उसके डायरेक्टर्स को जानता था, लेकिन मेरी असेसमेंट जो है वो आप 148 के अंदर जो है वो अब तो 10 साल पहले भी खोल सकते हो। क्या पता हो सकता है कि वो डायरेक्टर्स अब हो ही ना, या उस कंपनी के डायरेक्टर्स चेंज हो गए। तो क्लोजली हेल्ड कंपनी का जो बेसिस दिया गया था कि मैं उन डायरेक्टर्स को पर्सनली जानता हूंगा, वो एक वैलिड रीजन नहीं है। बट दिस बर्डन वाज कास्ट ऑन द एसएससी और जिसका इफेक्ट ये हुआ है कि जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है उनके अंदर अब जो कैपिटल लगनी है वो बंद हो गई है। इससे एक बिजनेस के ऊपर एक बहुत ज्यादा इफेक्ट ये पड़ा है क्योंकि एक डिस्क्रिमिनेशन कर दिया गया। यदि एक और वहां पे भी जो शेयर होल्डर है यदि वो रेजिडेंट है तभी उसको प्रूव करना है। यदि आप अपनी कंपनी के अंदर किसी नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर से कैपिटल लाते हो तो फिर सेक्शन 68 नहीं लगता, फिर आपको उसकी क्रेडिट वर्थिनेस नहीं बतानी। तो दिस इज ऑल्सो डिस्क्रिमिनेशन। द गवर्नमेंट इज नॉट प्रमोटिंग द मनी ऑफ द इकोनॉमी। आप बाहर से तो पैसा लगा यदि लाओगे तो उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यदि आप इंडियन पैसे को, यदि कोई मेरा रिश्तेदार पैसा लगाता है या दूसरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज लगाती हैं, तो ये सेक्शन 68 के अंदर फाइनेंस बिल 2012 के अंदर ये कहा गया कि आपको ये बताना है कि वो लोग कहां से पैसा लेकर के आए। उसके बाद जो एसएससी जो था वो ये प्ली लेता था कि साहब आपने ये कहा कि सेक्शन 68 के अंदर मेरी एडिशन कर रहे हो और आप ये कह रहे हो कि ये जेन्युइन शेयर कैपिटल नहीं है और आपने मेरा सेक्शन 68 के अंदर एडिशन कर दिया। तो एसएससी का उन केसेस में ये कहना होता था कि साहब आप ये बताओ कि ये मेरी कौन सी सोर्स ऑफ इनकम है। क्या मैंने ये पैसा रेंटल इनकम मेरी आई, मैंने अपने बिजनेस से कमाया? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी बहुत दो लीडिंग केसेस हैं जिनके अंदर कोर्ट्स ने एसएससी के अगेंस्ट दिया कि यदि एसएससी अपनी बात को प्रूव नहीं कर पाया, यदि एसएससी सेक्शन 68 के अंदर आइडेंटिटी, जेन्युइननेस और क्रेडिट वर्थिनेस प्रूव नहीं कर पाया, तो ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है ये बताना कि वो इनकम एसएससी को किस सोर्स से हुई होगी और वो सेक्शन 68 के अंदर एडिशन होगा। ये दो लीडिंग केसेस हैं, रोशन दी हट्टी वर्सेस सीआईटी 1977 एंड सेकंड केस इज काले खान मोहम्मद हानिफ वर्सेस सीआईटी। इन दोनों केसेस का जो क्रक्स है वो ये है कि देयर इज नो बर्डन
on revenue to show that the income is from any particular source of income. The moment assessee अपने क्रेडिट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो डिपार्टमेंट उसका एडिशन 68 में कर सकता है, और उसको पहले ये बताने की जरूरत नहीं है कि साहब ये आपका क्या सोर्स ऑफ इनकम रहा होगा. नाउ सेक्शन 68 के अंदर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, सीआईटी वर्सेस दुर्गा प्रसाद मोर 1971 82 आईटीआर 540, और सेकंड केस है सुमति दयाल वर्सेस सीआईटी 1995. ये दोनों केस जो है वो ह्यूमन प्रोबेबिलिटी टेस्ट पर हैं, और ये दोनों केस जो है वो डिपार्टमेंट भी अपने फेवर में यूज करता है, और बहुत जगह जो है वो असेसी भी इन दोनों केसेस का हवाला देता है. ह्यूमन प्रोबेबिलिटी टेस्ट क्या कहता है? ह्यूमन प्रोबेबिलिटी टेस्ट ये कहता है कि सपोज करो मेरी किसी कंपनी में किसी ने 1 करोड़ रुपए लगाया, एक शेयर 10 रुपए का 190 रुपए प्रीमियम पर दिया, तो डिपार्टमेंट ये कहता था वो आपने 200 रुपए पर कैसे इशू किया, वो आपकी कंपनी में पैसा क्यों लगाएगा? आपकी कंपनी के अंदर इतनी वर्किंग भी नहीं है, आपके उससे इतने अच्छे रिलेशंस भी नहीं है, आपका इतना जो प्रोजेक्ट है उसका कोई ब्रांड नेम भी नहीं है. तो इन दोनों केसेस के अंदर ये कहा गया कि कोई ट्रांजैक्शन की क्रेडिट वर्थीनेस को और जेन्युइननेस को चेक करने के लिए ह्यूमन प्रोबेबिलिटी टेस्ट भी जो है वो अप्लाई किया जाएगा. एक तरीके से कॉर्पोरेट व्हील उठाया जाएगा और ये देखा जाएगा कि खाली पेपर्स के बेसिस पर नहीं जाया जाएगा, और उसके पीछे जो है ट्रांजैक्शन, द डिपार्टमेंट विल सी थ्रू द ट्रांजैक्शन कि वेदर द ट्रांजैक्शन इज जेन्युइन. सपोज करो किसी एक ऐसी कंपनी से पैसा आ रहा है जिसके अंदर कोई वर्किंग नहीं है, जिसने पिछले 10 सालों से कोई टैक्स नहीं दिया, और वो मेरी कंपनी के अंदर पैसा लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मान लिया जाता है, डिपार्टमेंट इसको एज्यूम कर लेता है कि ये जो पैसा है वो एसएससी का होगा. अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ऐसा मान लेना ठीक है क्या? तो इसका एज ए एडवोकेट मेरा ये जवाब है कि सपोज करो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं कि जो जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं, जो जितने बड़े ग्रुप्स हैं, वो हर काम के लिए एक नई कंपनी बनाते हैं, और एक कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी के अंदर जो पेरेंट कंपनी होती है उसके अंदर पैसा लगाते हैं. तो जो फीडिंग कंपनीज होती हैं उनके अंदर जनरली वर्किंग नहीं होती. तो खाली ये देख लेना कि क्या एक एड्रेस पे 20 कंपनियां रजिस्टर हैं, क्या इसको ये माना जा सकता है कि ये पॉइंट एसएससी के एंगेस्ट में जाता है? इसके लिए भी बहुत सारे बड़े ग्रुप्स हैं. रिलायंस के एक एड्रेस के ऊपर 100 कंपनियां जो हैं वो काम करती हैं. तो क्या ये मान लिया जाएगा कि रिलायंस के अंदर जितनी भी कैपिटल जो है वो फर्जी लगती है या वो जेन्युइन नहीं है? तो जो ह्यूमन प्रोबेबिलिटी टेस्ट है वो बहुत ही एक टाइट रोप है, इसको प्रूव करना बड़ा मुश्किल है, बट लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, if the department feels that the assessee fails on the human probability test, then the addition can be made under section 68 and the whole family of section 69. At the same time, the human probability test also comes into the rescue of the assessee also. Sometimes the department make additions of crores of rupees on the assessee. तो उस केस में हम ये कहते हैं कि साहब आपने मेरे ऊपर 10 करोड़ रुपए का एडिशन किया, क्या असेसी के पास ऐसे इतने रियल एसेट्स हैं? उसका ना तो बैंक में बैलेंस है, ना उसके फिक्स्ड एसेट्स हैं, ना उसके पास इतने का स्टॉक है, ना उसके पास इतने के पर्सनल एसेट्स है, ना उसका घर है. तो उसने ये 10 करोड़ रुपए कमा के लगाया कहां से होगा? बहुत सारे ऐसे केसेस सेक्शन 69 ए पे बहुत रिसेंट जजमेंट्स आए हैं जहां पे कोर्ट्स ने ये कहा कि यदि जो आप एडिशन करने जा रहे हो, यदि वो सपोर्टेड बाय रियल एसेट्स नहीं है, तो यू कैन नॉट मेक द एडिशन. आपने कोई किसी के बुक्स में क्रेडिट आया, किसी की बुक्स में 10 करोड़ रुपए आके चले गए, तो आपने 10 के 10 करोड़ रुपए को एडिशन कर दिया. बट इफ दे आर नॉट सपोर्टेड by the real assets, then you cannot make the addition under section 69. So the test of human probability is very important, both from the point of view of the department and both from the point of view of the assessee also. Now the most important point comes in section 68
इन सेक्शन 68 मालवीय बार बार कनेक्शन टूट रहा है क्या? सर थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है. मालवीय बार बार कनेक्शन लूज कर रहा है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है. नो सर, बस थोड़ा सा I am डिस्टरबेंस audible? आ रहा है. यस सर, यू आर ऑडिबल. Okay. Now the next important thing is in section 68 is that in section 68 the word may is given. इसका सिग्निफिकेंस ये है कि सपोज करो कि जो एसएससी ने एक्सप्लेनेशन दी वो असेसिंग ऑफिसर साहब को पसंद नहीं आई, या उनको लगा कि ये एक्सप्लेनेशन जो है वो एडिक्वेट नहीं है जो भी एसएससी की बुक्स में क्रेडिट आए हैं, तो क्या ये जरूरी है असेसिंग ऑफिसर के लिए कि असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 68 के अंदर या 69 के अंदर एडिशन करे? तो उसका जवाब जो है वो सेक्शन 68 का जो हम यदि बेयर एक्ट पढ़ते हैं तो उससे आता है कि द वर्ड मे इज यूज्ड इवन इफ it may happen that the explanation given by the assessee is not up to the mark, then in that case also it is not compulsory for the assessing officer to make the addition. जैसा कि सेक्शन 50C के अंदर है कि वहां पे लिखा हुआ है कि यदि असेसिंग ऑफिसर ने देखा कि कोई ट्रांजैक्शन हुई और उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन से सेल कंसिडरेशन कम है, तो वहां पे शेल वर्ड है कि असेसिंग ऑफिसर को स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना है, लेकिन सेक्शन 68 के अंदर जो है वो मे वर्ड है. इवन इफ द असेसिंग ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द असेसी, देन इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर द असेसिंग ऑफिसर टू मेक द एडिशन. इसके कहने का मतलब यह है कि सपोज करो असेसिंग ऑफिसर ने किसी एक आदमी की असेसमेंट करते हुए पाया, एसएससी की असेसमेंट करते हुए, कि इसके यहाँ बहुत सारे क्रेडिट्स आए और उनको लगा कि एसएससी जो है वो खाली ये किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन का एम्प्लॉय था और बिजनेसमैन ने उसके इस के अकाउंट में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस की, तो आप उस एम्प्लॉय की एडिशन यदि कर देंगे सेक्शन 68 के अंदर जो कि सपोर्टेड बाय रियल इनकम नहीं है, तो यदि उनको ये लगता है कि ये अकाउंट खाली यूज हुआ था, तो इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर हिम, इट इज नॉट एसेंशियल फॉर हिम टू मेक द एडिशन अंडर सेक्शन 68 just because the explanation given by the assessee is not up to the mark. He is not bound to make the addition. He can take his discretion, he can use his discretion whether to make the addition or not. Just to make the huge demands into the records of the department is not a sensible thing. So the word may has been used in section 68 that it is not compulsory for the assessing officer to make the addition. Now the next point comes, in all cases where a receipt is to be taxed as income, the burden lies on the department to prove that it is within the taxing provision. सेक्शन 68 के अंदर जब हमने देखा है कि जब भी एडिशन होती है तो जो प्रोसीजर है वो कैसे चालू होता है कि डिपार्टमेंट हमको नोटिस देता है कि साहब आपकी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गई, आपने इतने लोन्स लिए थे, और उनके ऊपर हमारे ऊपर प्रोसीडिंग्स चलती हैं. और हम जब अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, हमने सारे शेयर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिए, मेमोरेंडम की कॉपी लगा दी, बैलेंस शीट की कॉपी लगा दी, और उसके बाद डिपार्टमेंट जो है वो बिना कुछ इंक्वायरी किए उसके ऊपर असेसमेंट ऑर्डर पास कर देता है और कह देता है कि साहब नहीं, ये तो जितनी भी कंपनियों से आपको पैसा आया इनकी जो अर्निंग है वो है ही नहीं, कोई भी इन्होंने सेंसिबल तरीके से आपके इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कोई प्रीमियम का जस्टिफिकेशन नहीं था. तो खाली ऐसा कर देने से डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी पूरी नहीं हो जाती. डिपार्टमेंट को चाहिए कि जो भी डॉक्यूमेंट्स एसएससी ने दिए हैं उनको गलत प्रूव करे, सेक्शन 68 का एडिशन करने से पहले उनको इंक्वायरी करे. डिपार्टमेंट के पास रैंडम प्रोविजंस हैं, सेक्शन 133 सब सेक्शन 6 का प्रोविजन है, सेक्शन 131 का है, सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 के अंदर वो इंफॉर्मेशन मंगा सकते हैं. लेकिन ज्यादा से ज्यादा यदि जो केसेस में देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि डिपार्टमेंट जो है वो 133 सब सेक्शन 6 का नोटिस इशू करते हैं और ऑर्डर में लिखते हैं कि साहब ये नोटिस एसएससी को या तो मिला नहीं, जिस शेयर होल्डर को या जिस लैंडर को दिया, यदि उसको नोटिस मिल गया तो उसने उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया, और यदि सपोज करो वो रिस्पॉन्स कर दे तो कहते हैं कि जो उसने कहा ये आप ही के एड्रेस से आया था, ये तो सब 10 के 10 लेटर जो है वो एक सेम हैंड राइटिंग में है. तो क्या ये सारी जो डिपार्टमेंट एलिगेशंस लगाता है ये वैलिड है? मेरी असेसमेंट चल रही है, मैंने 10 लोगों से लोन लिया हुआ है, मेरी असेसमेंट
शुरू होते ही मैंने सबको चिट्ठी लिखी, ईमेल लिखा, मैंने फोन करके कहा कि साहब आपको आएगा, और यदि आपको लगे कि आपका मतलब आपको रिप्लाई देने में तकलीफ है तो आई कैन सेंड माई प्रोफेशनल एंड ही कैन रिप्लाई ऑन माई बिहाफ आल्सो, क्योंकि मेरी असेसमेंट है, मुझे कंप्लीट करनी है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो दीज आर नॉट द वैलिड ग्राउंड्स। बहुत सारे केसेस के अंदर मैंने देखा है कि डिपार्टमेंट खाली इस बात पे 133 सबसेक्शन 6 के जो रिप्लाई शेयर होल्डर्स ने सबमिट किए ये कह के रिजेक्ट कर दिए कि साहब इन सब के ऊपर एक ही कलर के लिफाफे में है, ये इनके ऊपर एक ही हैंडराइटिंग से नीचे लिखा गया है। तो these are not the valid grounds for making the addition into the hands of the assessee. The department has to dig further. डिपार्टमेंट को 131 का स्टेटमेंट ले, और यदि सपोज करो कोई स्टेटमेंट देने नहीं आता तो एक असेसी को एक एटलीस्ट मौका दिया जाना चाहिए कि असेसी उसको प्रोड्यूस करे। लेकिन आपने खाली चिट्ठी लिख के वो नहीं आया। आज के टाइम में तो बहुत फ्रीक्वेंटली एड्रेस चेंज होते हैं, और पहले तो जो लेटर जाते थे वो एटलीस्ट फिजिकल पोस्ट से जाते थे, अब तो ईमेल से जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग 3-3 4-4 दिन अपना ईमेल भी नहीं देखते। तो यदि उससे नोटिस सपोज करो कि मिस हो गया और उसने उसका रिप्लाई नहीं दिया, तो ए वेरी नेगेटिव व्यू इज टेकन अगेंस्ट द असेसी। और अब तो असेसमेंट के अंदर बिल्कुल इसको इस तरीके से वार लेवल पे किया जाता है कि यदि आपने किसी तरीके से आपकी पर्सनल हियरिंग होनी है या आपने नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया तो नेक्स्ट डे जो है वो आपको ऑर्डर इशू कर दिया जाता है। सो दिस इज वेरी हाई हैंडेडनेस ऑन द पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट एज फार एज द असेसमेंट्स आर कंसर्न। सो एट दिस जंक्शन आई हैव टू सजेस्ट यू दैट कि आप जब भी अपने जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनके अंदर कम से कम अपने एड्रेसेस, जो आपका पैन नंबर है उसके अंदर अपने एड्रेस चेंज कराएं, क्योंकि अभी एक सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आया था जिसमें असेसी का ये प्ली था कि साहब मैंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर एड्रेस अपडेट कर दिया, लेकिन डिपार्टमेंट ने मेरे पैन नंबर वाले एड्रेस पे ही चिट्ठी भेजी और वो मुझे नहीं मिली, और मैं तो मेरी असेसमेंट भी हुई है, पिछली असेसमेंट का मुझे ऑर्डर भी नए वाले एड्रेस पे मिला जो मैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दे रहा हूं। तो उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी के अगेंस्ट में फैसला दिया और ये कहा कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द असेसी टू गेट हिज एड्रेस अपडेटेड इनटू द पैन नंबर। सो आज का सबसे बड़ा इंटेक यही होना चाहिए कि हमारे जितने भी एसएससी हैं, इवन हमारे केस में भी हमने हो सकता है कि पैन नंबर 20 या 25 साल पहले लिया और अपनी रिटर्न हम लेटेस्ट एड्रेस पे भर रहे हैं। तो जब ऐसा हो सकता है कि आपको कोई लेटर आए और वो पुराने एड्रेस पर आए, तो यू कैन नॉट टेक द प्ली दैट आई एम submitting my return on the latest address, so you should have given me the notice on the latest address. So on this point the Supreme Court is very clear, and the law laid down by the Supreme Court is the law of the land. You cannot challenge that also. Now the next question comes कि जब भी असेसमेंट होती है सेक्शन 68 के अंदर, तो हम पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन देते हैं, बढ़िया डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करते हैं, और उसके बाद असेसमेंट ऑर्डर में एक स्टैंडर्ड लाइन लिखी हुई आती है कि द सबमिशंस एंड द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द असेसी आर कंसीडर्ड एंड दे आर नॉट फाउंड टू बी टेनेबल. दिस इज द स्टैंडर्ड लाइन व्हिच द डिपार्टमेंट इज यूजिंग in all the assessment orders which are being passed now, issuing after the draft assessment order. So in this case the courts have given a very special line that the department cannot, by merely rejecting good explanation, unreasonably convert good proof into no proof. मतलब खाली डिपार्टमेंट ये कह के एक स्टैंडर्ड लाइन लिखने से मेरे गुड प्रूफ को नो प्रूफ में जो है वो कन्वर्ट नहीं कर सकता. लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि एक बार यदि एसएससी की असेसमेंट हो गई तो अब तो सीआईटी अपील पे भी सुनवाई नहीं होती, क्योंकि सीआईटी अपील भी फेसलेस है. अभी मैंने एक आईटीआई ट्रिब्यूनल का एक एनालिसिस किया, उसके अंदर 28 केसेस थे, और 28 केसेस के अंदर जो मैक्सिमम केसेस थे वो असेसी जो है वो अपील में गया हुआ था 28 केसेस के अंदर. कहने का मतलब ये है कि 28 केसेस के अंदर असेसी को रिलीफ नहीं मिला होगा तभी वो आईटीएटी गया, और उन 28 केसेस का जब डिसीजन आया तो 24 जजमेंट्स जो हैं वो आईटीएटी ने असेसी के फेवर में दिए, और खाली 4 जजमेंट जो है वो डिपार्टमेंट के फेवर में दिए. इसका मतलब ये है कि सीआईटी अपील के
24 जजमेंट जो हैं वो ITAT ने बेकार कर दिए. इट गिव्स ए वेरी क्लियर इंडिकेशन दैट कि दिस फर्स्ट अपीलेटिव अथॉरिटी इज मोर और लेस रिडंडेंट नाउ, कि जहां पे एसएससी की कोई सुनवाई नहीं होती. तो एसएससी के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी फाइल को, अपनी डॉक्यूमेंटेशन को असेसमेंट लेवल पर पूरा करके रखे, क्योंकि जो भी आपने बात कहनी है वो असेसमेंट लेवल पर कह दें. क्योंकि यदि आपने उस टाइम नहीं की तो सीआईटी अपील्स आपके पास कहेंगे, तो फिर वो रिमांड रिपोर्ट मांगेंगे. जब रिमांड रिपोर्ट मांगेंगे तो और 6 महीने, 8 महीने, 1 साल और फालतू लगेगा. और जिस असेसिंग ऑफिसर ने आपका ऑर्डर पास किया है, यदि आप ये समझते हैं कि वो आपकी रिमांड रिपोर्ट में फेवर में बात कर देगा, तो ऐसा नहीं है. तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेनेवर द असेसमेंट इज बीइंग डन, इट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द एसएससी दैट एटलीस्ट अपडेट हिज पैन एड्रेस, अपना ईमेल आईडी, अपना फोन नंबर. क्योंकि यदि एक भी नोटिस आपसे छूट गया जिसमें 2 दिन का टाइम दिया हुआ है, तो आप लास्ट तक ये बात प्रूव नहीं कर पाएंगे कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई. और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड की प्ली सबसे खतरनाक है. क्योंकि यदि आप ये कहेंगे साहब मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी, आप ये कहें कि मेरी बात को डिपार्टमेंट काट नहीं पाया, जस्टिस पे तो आईटीएटी फिर दोबारा रिवर्ट बैक कर देगी, और फिर दोबारा आप आईटीओ साहब के पास पहुंच जाएंगे 4 साल लड़ाई करने के बाद कि साहब इनके साथ नेचुरल जस्टिस करो. तो ईगो लेवल पे तो फिर दोबारा नेचुरल जस्टिस नहीं होना. तो वी शुड fight the case on the merits. The principle of natural justice is very dangerous in our country, because if you will plead for the natural justice का मतलब है साहब मेरी सुनवाई नहीं हुई. तो मैक्सिमम अभी जितने भी हाई कोर्ट उन केसेस के अंदर यह आया कि उन सारे रिमांड बैक कर दिया गया और दोबारा जो है उनकी सुनवाई हुई. तो अगेन यू आर इन ए सर्कल फॉर द लिटिगेशन. सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू फाइंड द फॉल्ट्स विद द असेसमेंट ऑर्डर. आप असेसमेंट ऑर्डर में गलतियां ढूंढें और उनको मेरिट्स पर लड़ें और टेक्निकलिटीज पर लड़ें. लेकिन यदि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो बहुत ज्यादा अब एसएससी के काम की चीज नहीं है. एक केस है सीआईटी वर्सेस प्रिसीजन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड. इसके अंदर एक बात कही कोर्ट ने कि अकाउंट पे चेक इज आल्सो नॉट सैक्रोसेंट एंड दिस कैन नॉट मेक ए बोगस ट्रांजैक्शन एज जेन्युइन वन. मेरा कहना यह है कि हालांकि ये जो डिसीजन है, ये वाला जो लाइन है, ये एक एसएससी के अगेंस्ट है. लेकिन पेनी स्टॉक के केसेस के अंदर बहुत सारे केसेस में ऐसा है कि जहां पे एसएससी ने अपने शेयर्स जो है वो कैश में खरीदे होते हैं, और डिपार्टमेंट की एक बहुत बड़ी एलिगेशन होती है कि साहब इसने जो अपने शेयर्स जो हैं वो कैश में खरीदे हैं, इसलिए जेन्युइन नहीं है. तो जब एक तरफ आप ये कहते हैं कि साहब एक खाली चेक से पेमेंट कर देने से किसी एसएससी की ट्रांजैक्शन जेन्युइन नहीं होगी, इसी तरीके से खाली मेरे कैश में शेयर खरीद लेने से मेरी ट्रांजैक्शन नॉन जेन्युइन नहीं हो जाती. सो दीज टाइप ऑफ व्हेनेवर ए डिसीजन कम्स अगेंस्ट द एसएससी, so the role of that decision is also in favor of the SSC also. हम उसको अपने फेवर में भी यूज कर सकते हैं कि जिस तरीके से आप ये कहते हैं कि साहब बैंक की ट्रांजैक्शन करने से कोई ट्रांजैक्शन को हमने पवित्र नहीं कर दिया, इसी तरीके से यदि मैं कोई ट्रांजैक्शन कैश में कर देता हूं तो वो मेरी ट्रांजैक्शन अपवित्र नहीं हो जाती. In one another leading case, one point was given by the court. In this it was laid down that it is a question of examining as to what is apparent and what is real. कई बार क्या होता है कि कोई चीज फैक्ट से ये दिख रहा होता है कि साहब ये गलत है, लेकिन यदि हम उसके ट्रांजैक्शन के पीछे जाएं तो ये पता चलता है कि वो गलत नहीं है. एग्जाम्पल के तौर पर अभी एक रीसेंट केस के अंदर ये हुआ कि एक लेडी थी, उसकी मदर ने उसको प्रॉपर्टी गिफ्ट करी, लेकिन जब डॉक्यूमेंट राइटर के पास गए वो, तो डॉक्यूमेंट राइटर ने उस पर गिफ्ट डीड नहीं लिखा और ये लिख दिया कि ये प्रॉपर्टी जो है वो उसकी मदर ने अपनी बेटी को बेची है और 26 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन थी. असेसिंग ऑफिसर साहब असेसमेंट कर रहे थे. असेसमेंट कराते वक्त उस लेडी ने अपने भाइयों के एफिडेविट दिए
कि ये मेरी मदर ने मुझे प्रॉपर्टी गिफ्ट की थी और जब असेसमेंट चल रही थी तो उस वक्त तक उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी, तो मदर भी आकर के ये नहीं कह सकती थी कि नहीं जी मैंने अपनी बेटी को गिफ्ट किया। डॉक्यूमेंट राइटर जो है वो मिला नहीं। तो इस केस में अपेरेंटली जो है वो ये लगता है कि असेसी ने ये प्रॉपर्टी कैश में खरीदी होगी, लेकिन क्या ये रियल है? सो द प्रोसेस शुड बी टू गो टू द heart of the transaction, whether it is real or apparent. Sometimes it may happen that apparently the transaction is bogus, but when we go into the deep into the transaction, it may happen that the transaction is, कई बार असेसी जो है वो इतने फंटास्टिक डॉक्यूमेंट्स बना करके लेके जाते हैं, जैसा कि शेयर कैपिटल के केस में होता था कि जितने भी एंट्री प्रोवाइडर्स जब एंट्री शेयर कैपिटल लगाते थे तो उनके पूरे रिकॉर्ड्स होते थे, उसके अंदर वो शेयर सर्टिफिकेट भी इशू करते थे, उनका मेमोरेंडम भी होता था, उनकी बैलेंस शीट भी होती थी, आईटीआर की कॉपी भी होती थी, वहां पे एफिडेविट भी लगाया जाता था, रेजोल्यूशन की कॉपी भी होती थी। सो एज फार एज द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द एंट्री ऑपरेटर्स आर कंसर्न्ड, दे आर फैंटास्टिक इन दैट, बट इन दैट केस द ट्रांजैक्शन इज नॉट द रियल। सो दैट वाई खाली उसकी वजह से सेक्शन 68 को इतना रिगर कर दिया गया कि कुछ लोगों की वजह से सबके ऊपर जो है वो बुलडोजर चल गया। The next point comes, एक बार एक केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर साहब ने 131 के अंदर शेयर होल्डर्स को नोटिस दिया और ये कहा कि आप आकर के बताएं कि आपकी जो शेयर जो आपने इन्वेस्टमेंट किए जेन्युइन है या नहीं। असेसी को पता चला कि द असेसिंग ऑफिसर is making the inquiry under section 133 subsection 6 and 131. So the assessor tried to jump into that inquiry कि साहब मुझे भी बताओ कि उस शेयर होल्डर ने आके क्या कहा। तो उस मैटर पे कोर्ट ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो भी असेसिंग ऑफिसर अपनी इंक्वायरी कर रहा है, द असेसी हैज नो राइट टू इंटरफियर इन दैट इंक्वायरी। वो इंक्वायरी जब हो जाएगी, उसकी जब रिपोर्ट आ जाएगी तो वो रिपोर्ट आपको दी जाएगी, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट मेक हर्डल्स इनटू द इंक्वायरी प्रोसेस ऑफ द असेसिंग ऑफिसर। सो दिस इज अ वेरी गुड लॉ कि आप यदि हम इंक्वायरी के अंदर असेसी जो है वो इंटरफियर करेगा तो कोई भी असेसमेंट जो है वो टाइम पे पूरी नहीं हो पाएगी। अब हमने देखा है कि जब असेसी जो है वो सीआईटी अपील पे या आईटीएटी के अंदर अपने मैटर को जीत जाता है क्रेडिट वर्थीनेस के ऊपर, आइडेंटिटी को प्रूव करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। बैंक से ट्रांजैक्शन हुई है तो वो ट्रांजैक्शन जो है वो जेन्युइन मानी जाती है, मोर और लेस। बात आती है क्रेडिट वर्थीनेस की। यदि मैंने अपनी ट्रांजैक्शन को क्रेडिट वर्थीनेस प्रूव कर दिया और सीआईटी अपील ने भी या आईटीएटी ने उसको मान लिया कि शेयर होल्डर की या जिसने लोन दिया उसकी क्रेडिट वर्थीनेस थी और असेसी की ट्रांजैक्शन जेन्युइन है, तो जब डिपार्टमेंट ऐसे केसेस के अंदर जहां पे क्रेडिट वर्थीनेस भी प्रूव हो चुकी होती है वहां पे हाई कोर्ट जाता है, तो एक बहुत अच्छा एक लॉ का पॉइंट निकल के आता है कि कोर्ट ने कहा है कि क्रेडिट वर्थीनेस इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। हाई कोर्ट जो है वो शेयर होल्डर्स की या लैंडर्स की क्रेडिट वर्थीनेस को चेक करने के लिए नहीं बैठा है। तो हम इसको भी एक ग्राउंड बना सकते हैं कि जहां पे डिपार्टमेंट क्रेडिट वर्थीनेस के ऊपर क्वेश्चन कर रहा हो कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर आईटीएटी के जजमेंट को, क्योंकि आईटीएटी इज द लास्ट फैक्ट फाइंडिंग बॉडी एंड यू कैन नॉट गो इनटू द हाई कोर्ट ऑन द पॉइंट्स ऑफ फैक्ट्स, यू कैन गो ओनली ऑन द पॉइंट्स ऑफ लॉ देयर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट whether the share applicants are credit worthy or whether the lenders are credit worthy or the person to whom the assessee has made the transaction is credit worthy, it is a question of fact, so it cannot be challenged by the department into the high court. So this point is very important as far as the credit worthiness is concerned, because ये देखा गया है कि जब भी डिपार्टमेंट, चाहे वो सीआईटी अपील पे तो खैर अब डिपार्टमेंट हारता ही नहीं है, सारा सीआईटी अपील डिपार्टमेंट के फेवर में जाता है। आईटीएटी के अंदर जब भी डिपार्टमेंट हारता है तो दे गो इनटू द हाई कोर्ट। सो इन हाई कोर्ट आल्सो, in spite of
fighting on the merit also, we should also make a ground. We can make it as our ground that जिस पॉइंट पर डिपार्टमेंट लड़ रहा है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है. तो क्रेडिट वर्थीनेस जो है वो एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है जो कि हाई कोर्ट जो है वो उसको अपने यहां टेस्ट नहीं करेगा. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कम्स, कई बार एसएससी की बुक्स के अंदर बहुत सारी एंट्रीज पाई गई. फॉर एग्जांपल कि हमारे यहां जब किसी से शेयर कैपिटल आई तो एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, या लोन आया तो हमने अपनी बुक्स में एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन. लेकिन कई बार इसके अलावा भी जो है वो क्रेडिट एंट्री हो सकती है. सपोज करो जर्नल एंट्री कोई पास की गई, ए अकाउंट डेबिट टू बी, तो ये भी एक बुक्स में एक क्रेडिट एंट्री है. तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या ऐसी एंट्रीज भी सेक्शन 68 के अंदर ऐड की जा सकती हैं. तो इसके लिए जो मेरा एक हम्बल ओपिनियन है वो ये है कि जब तक वो ट्रांजैक्शन बैंक में या कैश में नहीं हो, सेक्शन 68 के अंदर उसका एडिशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेक्शन 68 की जो सोल है, जो आत्मा है, वो ये कहती है कि आपको इसमें एडिशन करने से पहले उस एंट्री के कोरोबोरेटिव एविडेंस में भी जाना है. आपको खाली वो एंट्री नहीं देखनी. तो इफ दैट अमाउंट इज कोरोबोरेटिव with the evidence, then you can make the addition under section 68. now जैसा कि जब हमने ये सेमिनार शुरू किया तो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट केस जो है वो आप लोगों के डिस्कस किया था. केस का नाम है मिस मायावती वर्सेस DCIT 113 TTJ 178 दिल्ली. कई बार जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उनका ये फायदा होता है कि जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं वो जनरली बहुत बड़े एडवोकेट्स फाइट करते हैं और उनके अंदर कुछ ऐसे जजमेंट्स आ जाते हैं कि जो कि एक नॉर्मल एसएससी के लिए बड़े फायदेमंद होते हैं. जिस तरीके से सेक्शन 68 में जब बहुत बड़े बड़े एसएससी अपने फेक मनी लेके आते थे तो 68 में जो अमेंडमेंट आई उसकी वजह से सभी पिस गए. लेकिन कई बार इसका रिवर्स भी होता है. ये मायावती का केस इस चीज का एक बेस्ट एग्जांपल है, जिसके अंदर कोर्ट ने 4 चीजें बहुत बढ़िया डिसाइड की. मैं आपको पढ़ के बताता हूं. पहली बात ये कही कि ये पासबुक कैन नॉट बी ट्रीटेड एज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द एसएससी. मेरी स्टेटमेंट डिपार्टमेंट को मिल गई जिसके अंदर 10 करोड़ रुपए आए हुए थे. खाली उस स्टेटमेंट के बेसिस पर आप मेरी एडिशन नहीं कर सकते जब तक कि आपको ये ना मिले कि वो पैसा मेरे पास है, मेरी बुक्स के अंदर है. दूसरी बात कोर्ट ने कही, द बैंक डज नॉट एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द कस्टमर. बैंक जो है वो मेरा एजेंट नहीं है, इसलिए आप उस पासबुक को मेरी बुक्स नहीं मान सकते. थर्ड पॉइंट इस केस में कोर्ट ने कही कि द बैंक डज नॉट मेंटेन द पासबुक अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कस्टमर. जो पासबुक है वो बैंक कस्टमर की इंस्ट्रक्शन पर मेंटेन नहीं कर रहा. तो आप ये नहीं कह सकते कि ये जो पासबुक है वो जब वो मेरी इंस्ट्रक्शन पे कर ही नहीं रहा तो वो मेरी डॉक्यूमेंट ही नहीं है. दैट इज द डॉक्यूमेंट ऑफ द बैंक. एंड द फोर्थ पॉइंट जो कि इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आया वो ये निकल के आया कि द रिलेशनशिप बिटवीन द बैंकर एंड द कस्टमर इज वन ऑफ डेब्टर एंड क्रेडिटर. तो जिस तरीके से हम माल बेचते हैं और वो हमारा डेटर कहलाता है, जिससे हम गुड्स खरीदते हैं वो हमारा क्रेडिटर कहलाता है. तो ये एक रिलेशनशिप होता है. इसी तरीके से यदि हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हमें बैंक से पैसे लेने होते हैं, और यदि हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक हमारा क्रेडिटर होता है. तो हमारे और बैंक के बीच में जो रिलेशनशिप है वो प्रिंसिपल और एजेंट का नहीं है. पासबुक के खाली पासबुक के बेसिस पर हमारी एडिशन नहीं की जा सकती. इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी सैलरीड क्लास के लोग हैं वो तो अपनी बुक्स मेंटेन ही नहीं करते, तो उनके यहां तो सेक्शन 68 के अंदर एडिशन हो ही नहीं सकता. तो इसीलिए सेक्शन 69 का बेसिकली साथ के साथ उसको पैरेलल चलाया गया, क्योंकि एसएससी ये प्ली लेगा कि साहब ये तो मेरी सेक्शन 68 में एडिशन ही नहीं कर सकते आप, क्योंकि मैं तो बुक्स ही नहीं है. तो भाई 68 में नहीं हो सकती तो अब आप 69 में जाएंगे. यहां पे एक क्वेश्चन ये आता है कि सपोज करो कि मेरी कोई एडिशन 68 में होनी चाहिए थी लेकिन 69 में हो गई, या वाइस वर्सा. तो क्या अपील के टाइम कोर्ट ये कह सकती है कि सेक्शन का ही तो झगड़ा है, आपने 68 में भी आपको 115 BBE लगेगा, 69 में भी लगेगा, चलो और सेक्शन चेंज कर देते हैं.
आपकी टैक्स लायबिलिटी तो सेम रहेगी। सो एनी ओपिनियन ऑन दिस थिंग कि क्या ऊपर जाकर के कोर्ट ये कह सकती है कि साहब असेसमेंट तो ऐसे होल होती है, चाहे 68 में हो, चाहे 69 ए में हो, बी में हो, सी में हो, डी में हो, या खाली 69 में हो। तो इसके ऊपर जो मेरा हम्बल ओपिनियन ये है कि यदि सेक्शन गलत है तो आपकी एडिशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि हर सेक्शन की एक अलग मर्यादा होती है, हर एक सेक्शन की एक अलग डिफरेंट टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर सेक्शन के ऊपर डिफरेंट टाइप का बर्डन एसएससी के ऊपर कास्ट किया जाता है, और हर सेक्शन के अंदर असेसिंग ऑफिसर की अलग जिम्मेदारी होती है। तो यदि आपने सेक्शन को गलत लिखा है तो आपके ऊपर गलत सेक्शन के अंदर जो है वो एडिशन नहीं की जा सकती, उस केस में एडिशन डिलीट होनी चाहिए। इसका एक बेस्ट जो एग्जांपल है सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, पेनल्टी लगती थी 2016 तक, तो तब क्या होता था कि ऊपर लिखते थे पेनल्टी फॉर फर्निशिंग इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स ऑब्लिक फॉर कंसीलमेंट ऑफ इनकम, और जो एप्रोप्रिएट पार्ट होता था उसको टिक भी नहीं करते थे। तो ये मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है, और सुप्रीम कोर्ट ने डिपार्टमेंट की एसएलपी जो है वो डिसमिस कर दिया और ये कहा कि यदि आपको सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी का नोटिस आया, 274 रेड विद सेक्शन 274, और आपने ये नहीं बताया एसएससी को उसके अंदर नोटिस के अंदर कि आप पेनल्टी फॉर कंसीलमेंट लगा रहे हैं या पेनल्टी फॉर फर्निशिंग ऑफ इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स लगा रहे हैं, तो आपका पेनल्टी का नोटिस ही क्वैश हो जाएगा, कोई पेनल्टी जो है वो आपके ऊपर लेवी नहीं की जा सकती। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट द डिपार्टमेंट शुड टेल कि आप मुझे किस बात की सजा देने जा रहे हैं, आप मुझे ये तो बताएं अपने डॉक्यूमेंट से। नाउ सेक्शन 68 के अंदर जिस तरीके से मायावती के केस में कोर्ट ने ये कहा कि जो पासबुक है वो बैंक एसएससी की बुक्स नहीं है, इसी तरीके से कुछ केसेस के अंदर कोर्ट ने यह भी कहा है कि इवन द बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैन नॉट बी इक्वेटेड टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इवन बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है? जो हम रेगुलरली मेंटेन करते हैं। मेरे यहां माल आया, मैंने उसकी एंट्री करी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, मैंने माल बेचा, मैंने एंट्री अपनी बुक्स में करी, डेप्टर्स अकाउंट डेबिट टू सेल, मैंने लोन लिया, मैंने एंट्री करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, मेरे यहाँ कैपिटल आया, मैंने एंट्री करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सो दीज आर द बुक्स। सपोज करो किसी एसएससी ने अपनी बुक्स नहीं बनाई, तब भी हम उसकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना सकते हैं। जब किसी एसएससी की प्रॉपर बुक्स नहीं होती और हम उसकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना देते हैं, तो दैट इज बैलेंस शीट। सो ओनली द बैलेंस शीट एंड द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैन नॉट बी ट्रीटेड एज बुक्स। कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हमने देखा है कि बैलेंस शीट में जो असेसिंग ऑफिसर होता है वो लोन्स को भी और जो क्रेडिटर्स होता है उनको भी सेक्शन 68, सेक्शन 69 के अंदर ऐड कर देते हैं। तो जब तक वो मेरी बुक्स में नहीं है, यदि मेरे बुक्स से उनका जन्म नहीं हुआ है, जब तक जो है उसका एडिशन जो है वो सेक्शन 68 के अंदर नहीं किया जा सकता। नाउ द क्वेश्चन कम्स दैट कि सेक्शन 68 के अंदर एडिशन जो है वो खाली आप उसी साल में कर सकते हैं जिस साल के अंदर क्रेडिट पाया गया, या सेक्शन 69 के अंदर एडिशन तभी कर सकते हैं जब उस साल के अंदर आपने जिस साल में मैंने इन्वेस्टमेंट किया था उस साल के अंदर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी एसएससी ने कोई घर 15 साल बाद खरीदा और आज उसके यहां रेड हो गई। अब 15 साल तो आप सेक्शन 148 जो नया 148 है उसके अंदर भी आप नहीं जा सकते, और 153A जो था उसमें भी 6 और 4 साल मैक्सिमम 10 सालों तक जा सकते थे। तो आप उस 15 साल वाली प्रॉपर्टी का एडिशन जो है वो सेक्शन 68 में नहीं कर सकते। जिस साल की ट्रांजैक्शन है उसी साल में एडिशन होगा और उसी साल का रेट ऑफ टैक्स जो है वो अप्लाई होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैश क्रेडिट फॉर द प्रीवियस ईयर शोन इन द एसएससी बैंक पासबुक but not shown in the cash book maintained by the SSC for that year does not fall within the ambit of section 68 of the Income Tax Act 1961. So this is very important. जिस साल की ट्रांजैक्शन है उसी साल के अंदर जो है आप एसएससी का एडिशन कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं जा सकते। द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब असेसिंग ऑफिसर हमारी असेसमेंट कर रहा होता है तो उसको जरा सी भी बुक्स के साथ ऊपर नीचे लगता है
सपोज करो एसएससी ने स्टॉक मेंटेन नहीं किया, एक लीकर शॉप है, लीकर शॉप के अंदर जब लीकर बिकती है तो वहां पे बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, बड़ी हफ्दड़ मची होती है। तो वो लोग जो लीकर शॉप वाले एंट्री करते हैं उनका तरीका ये होता है कि वो पर डे की सारी सेल देख लेते हैं और उसकी एक अपनी बुक्स में एंट्री कर देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। तो उनके यहाँ यदि एक एक एंट्री करेंगे, क्योंकि ना तो जिसको सेल कर रहे हैं, जो ड्रिंक लेके जा रहे हैं, उसका नाम तो नोट करते नहीं है और ना उसका वो हर जगह प्रैक्टिकली बिल भी नहीं फाड़ रहे, तो क्या हर सेल का बिल ना निकालना या हर सेल की अलग एंट्री ना करना, क्या असेसिंग ऑफिसर को यह अधिकार देता है कि वो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट कर दे? दूसरा, कोई परचून की दुकान है, कोई जितने मॉल्स हैं, या जितने मॉल्स में तो फिर भी आप कह सकते हैं कि बड़े अकाउंटिंग सिस्टम्स लगे हुए हैं, रियल टाइम बेसिस पर भी वहां पे एंट्री हो सकती है। लेकिन सपोज करो कोई एक छोटा जर्नल स्टोर है या छोटे स्टोर्स हैं जहां पे आदमी 5 रुपए की भी चीज खरीदता है और 2000 रुपए की भी चीज खरीदता है, तो वो लोग भी, उनका सिस्टम यह है कि जो पूरे दिन की सेल हुई उन्होंने उन सेल की एक एंट्री पास कर दी। और ऐसे केसेस में उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट रिजेक्ट करके जीपी रेट बढ़ा दिया कि मैंने सपोज करो जीपी रेट दिखाया हुआ 10%, अब असेसिंग ऑफिसर साहब कह रहे हैं नहीं, अब आपका जीपी रेट 15% होगा, ठीक है, यहां तक जायज है। लेकिन फिर उसी सेट ऑफ बुक्स में अंदर उनको कोई मिल गया कि एक दिन के अंदर कोई 1 लाख रुपए का सामान लेके गया, तो अब असेसिंग ऑफिसर साहब को बड़ी तकलीफ हुई कि नहीं, मैं तो 15% कम लिया, अब उस 1 लाख को भी 68 में जोड़ दिया। सो इन दिस रिगार्ड there is very one important judgment, Individual Construction versus CIT 1998। इस केस में यह कहा गया कि यदि आपने एक बार बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट कर दिया और आपने एक स्पेशल रेट लगा दिया एसएससी के ऊपर, तो आप फिर उस, जब आपने बुक्स रिजेक्ट कर दी, तो बुक्स रिजेक्ट करने के बाद आप सेम बुक्स को अब दोबारे फिगर मत उठाओ और उसका एसएससी का एडिशन मत करो। वन बुक्स रिजेक्टेड adopted a rate of addition, then same set of books cannot be relied for making further additions। अब इसके आगे चलते, सपोज करो उसने बुक्स ऑफ अकाउंट रिजेक्ट कर दिया। अब बुक्स ऑफ अकाउंट रिजेक्ट करने के बाद उन्होंने देखा कि साहब किसी बात पे टीडीएस नहीं काटा, तो क्या बुक्स ऑफ अकाउंट रिजेक्ट करने के बाद भी वो मेरा सेक्शन 40A IA के अंदर डिसअलाउंस कर सकते हैं? तो इन माय हम्बल ओपिनियन, once you have rejected the books, then do not rely that books, you just go by your percentage। So this is very important case in dealing with those cases where the books of accounts have been rejected and a special rate has been applied for the assessee, so the same set of books cannot be relied upon for making the addition under section 68, this thing। So as far as section 68 is concerned, I have tried to cover up most of the things. Now I have near about 20 minutes, so we will start section 6. I'm audible? Oh, sir. So will you share your PPT right now? Do you want it from PPT or just this is okay? Sir, Because PPT I will share with you people. Oh, okay. So you can continue. You want to go with PPT? So if you find it like, if you find it okay, so we can share your screen as well. I am opening the PPT also, but I will share the PPT because in PPT it is only like reading and then speaking. So I think that PPT I will share later on, and Okay, sir. No issue. okay. Shall we take the questions? I think first of all we should complete this, and then we can go with both on section 68 and 69. That will Okay, be okay, right, so you better. can continue. Yes, sir. You can continue. Because in next 20 minutes the section 69 will be over. So now section 69। अब 69 का जन्म क्यों हुआ कि एसएससी ये कहता था कि साहब मेरे यहाँ कोई एंट्री मिली, ये तो मेरी क्रेडिट एंट्री है, तो क्रेडिट एंट्री का तो आप सेक्शन 68 में एडिशन कर सकते हो। तो डिपार्टमेंट को बड़ी तकलीफ थी कि भाई कोई क्रेडिट नहीं है और दूसरी साइड है, तो दूसरी साइड को करने के लिए जो एक्सपेंडिचर साइड थी
उसको करने के लिए सेक्शन 69 लाया गया। तो सेक्शन 69 की जो सबसे पहली कंडीशन है वो ये है कि एसएससी मेड द इन्वेस्टमेंट्स। यदि एसएससी ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है तो आप सेक्शन 69 के अंदर एडिशन नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट ये है कि सेक्शन 69 के एडिशन करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इफ एनी। सेक्शन 68 और 69 में फर्क क्या है कि सेक्शन 68 के अंदर ये लिखा है कि ट्रांजैक्शन बुक्स में होनी चाहिए, लेकिन सेक्शन 69 में इफ एनी वर्ड लिखा है कि यदि कोई बुक्स है मेरी और मैंने वो बुक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड नहीं किया है, तभी आप मेरी सेक्शन 69 के अंदर एडिशन कर सकते हो। बट नेचुरल है, क्योंकि यदि एसएससी की बुक्स हैं और बुक्स के अंदर एसएससी ने अपनी इन्वेस्टमेंट दिखाई हुई है तो आप फिर दोबारा सेक्शन 69 के अंदर उनके एडिशन नहीं कर सकते। तो पहली कंडीशन ये है कि एसएससी की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि एसएससी ने वो इन्वेस्टमेंट जो है वो अपनी बुक्स के अंदर ना रिकॉर्ड की हो। बुक्स वो यदि हैं तो ठीक है, वरना नहीं, क्योंकि यदि यहाँ पे भी इफ एनी वर्ड नहीं होता तो जितने भी सैलरीड क्लास और जो भी बुक्स नहीं मेंटेन करता वो सेक्शन 69 के क्लचेस से बाहर हो जाते। और थर्ड कंडीशन ये है कि द एसएससी ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर एंड सोर्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स। तो यहां पे भी सेक्शन 69 के अंदर भी दोनों बातें हैं, नेचर एंड सोर्स। आपको एसएससी को उस कि आप वो पैसा कहां से लाए और आपको ये भी बताना है कि ये इन्वेस्टमेंट किस रूप में है। वो इन्वेस्टमेंट, मेरे पास घर है, मेरे पास ऑफिस है, मेरे पास शेयर्स हैं, मेरे पास ज्वेलरी है। सो यू हैव टू टेल द नेचर ऑफ द इन्वेस्टमेंट आल्सो एंड द सोर्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट आल्सो। And the fourth point is the same, which was in section 68. In 69 also, the addition can be made only for the investments which have been made in the previous year for which the assessment is going on. जब सेक्शन 69 लाया गया था तो उस वक्त बिल के अंदर जिस तरीके से सेक्शन 68 में भी हमने देखा कि मे वर्ड है, यदि असेसिंग ऑफिसर साहब को हमारी एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आती तो वो हमारा एडिशन कर सकते हैं। इसी तरीके से जब सेक्शन 69 लाया गया तो 69 था, मतलब एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं, उन्होंने पूरी even if the explanation Malvi, any disturbance from your side? Yes, sir. There's some disturbance from your side. Would you repeat the last 2 minutes, whatever you have discussed, sir, in last 2 minutes? Okay. I have said that कि जब 69 को प्रपोज किया गया था तो पहले वहां पे शेल वर्ड था कि यदि असेसिंग ऑफिसर साहब को हमारी एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आई तो उनके लिए जरूरी था एडिशन करना, लेकिन बाद में उस पर ह्यूज एंड क्राई हुआ और उसको भी शेल की जगह मे कर दिया गया। अब इन सेक्शन 68 एंड 69 द वर्ड मे इज देयर इवन इफ द असेसिंग ऑफिसर feels that the explanation given by the assessee is not up to the mark, even then also it is not compulsory for him to make the addition under section 69. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये 68 में भी काम आता है और 69 की फैमिली में भी काम आता है। सपोज करो मैंने किसी आदमी से ट्रांजेक्शन करी, किसी ने मुझे लोन दिया। वैसे आज के टाइम में ऐसा नहीं होता कि किसी के पास पैन नंबर नहीं है यदि कोई बैंक से ट्रांजेक्शन कर रहा है, बट इवन इफ सम पर्सन हैज गिवन मी ए लोन एंड दैट पर्सन इवन डज नॉट हैव ए पैन नंबर, देन डज इट मीन दैट कि दैट पर्सन इज नॉट क्रेडिट वर्दी? So on this point there is one very important case.
The name of the case is CIT versus Messrs Mark Hospitals Private Limited 2014. इस केस के अंदर कोर्ट ने ये कहा कि यदि किसी के पास पैन नंबर नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो आदमी क्रेडिट वर्दी नहीं है। इस केस के अंदर जिसने इन्वेस्टमेंट किया था, लोन दिया था, वो एक फार्मर था और फार्मर की इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं होती, तो उसको पैन नंबर लेने की जरूरत नहीं है। हमारी फैमिलीज में भी हो सकता है कि मेरी मदर के पास पैन नंबर ना हो, उनके बैंक में बैलेंस हो, फैमिली ने उनको सपोर्ट किया हो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, यदि उन्होंने कोई पैसा दिया एंड ओनली बिकॉज ऑफ द रीजन कि देयर मे बी 100 of reasons for making the addition, but only on the reason that a person does not have a PAN number, it does not give a negative feeling that the transaction is not genuine. Next point in case of section 69 is that whenever we are making our presentation before assessing officer or CIT appeal, we try our level best to raise all the points in the lower authorities. इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं। एक बार एक अपील के अंदर हमारा मुद्दा यह था कि जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने आकर के किसी ने भी 133(6) का रिप्लाई नहीं दिया, 131 का रिप्लाई नहीं दिया। तो हमारा ये कहना था अपीलेट अथॉरिटी के अंदर कि साहब, इन लोगों ने मेरी कंपनी में पैसा लगाया, मैं इन लोगों को डिविडेंड नहीं दे पाया, मैं इन लोगों के पैसे के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पाया, तो इन लोगों ने एक कार्टेल बना लिया कि हम अमित की असेसमेंट के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और इस वजह से ये लोग जो है वो मेरे साथ कॉपरेट नहीं कर रहे, और इन्होंने जो है वो 133 सबसेक्शन 6 और 131 के अंदर जो आप लोगों ने नोटिस भेजे थे उसका जो है वो रिप्लाई नहीं दिया है। तो कोर्ट ने कहा कि आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ऐसा हो सकता है, लेकिन आपने ये बात लोअर अथॉरिटीज को क्यों नहीं कही। सो नाउ इन दैट केस कोर्ट ने हमें ट्रैप किया। तो कोर्ट का कहना था कि इट इज योर आफ्टर थॉट। सो माई पॉइंट इज दैट इफ यू हैव एनी थॉट इन योर माइंड, इफ यू हैव एनी पॉइंट विच यू वांट टू रेज, then try to raise maximum points at the level of the assessing officer so that you can substantiate those points at the appellate authorities. Now the next point is that for making additions under section 69, फिर क्वेश्चन आता है कि बर्डन किस पर है। तो जो स्टार्टिंग बर्डन है वो डिपार्टमेंट पे है क्योंकि डिपार्टमेंट को ये प्रूव करना है कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो मेरी टैक्सेबल है। लेकिन जैसे ही उन्होंने हमें लेटर भेजा, बर्डन एसएससी के ऊपर आया, हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए, और डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद जो असेसिंग ऑफिसर है उसकी जिम्मेदारी है कि वो उनकी ऑथेंटिसिटी को चेक करे, आगे इंक्वायरी करे, और एसएससी को एडिशन करने से पहले एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे, ताकि जो है एसएससी जो भी एलिगेशंस हैं डिपार्टमेंट के उनको पूरा टाइमली जवाब दे पाए। सो अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू द एसएससी टू मेक हिज पॉइंट दैट व्हाटएवर द सबमिशंस द एसएससी हैज गिवन और व्हाटएवर द डॉक्यूमेंट्स द एसएससी हैज गिवन that are genuine and that supports the investment of the assessee. Now the next point comes that section 68 के अंदर क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के है, तो जनरली सर्च केसेस में क्या होता है कि किसी एसएससी के यहाँ सर्च की और वहां जाकर के, क्योंकि बड़े ग्रुप्स के अंदर लोन लेने के लिए बहुत सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनती हैं, वैल्यूएशन रिपोर्ट्स होती हैं, तो डिपार्टमेंट को कोई प्रोजेक्शंस की मिल गए कि इनकी सेल 100 करोड़ है, और वैल्यूएशन रिपोर्ट जनरली लोग लोन लेने के पर्पस के लिए ज्यादा हाई वैल्यू की बनवा लिया। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या प्रोजेक्शन रिपोर्ट्स और वैल्यूएशन रिपोर्ट्स के बेसिस पर भी एसएससी का एडिशन किया जा सकता है? यदि मैंने कोई प्रॉपर्टी बुक्स में खरीदी हुई है 2 करोड़ रुपए की और वैल्यूएशन रिपोर्ट उसकी 4 करोड़ रुपए की है, तो कैन डिपार्टमेंट मेक एन एडिशन ऑफ फर्दर 2 करोड़ अंडर सेक्शन 69 कि आपने इस प्रॉपर्टी के लिए 2 नहीं 4 करोड़ दिए होंगे? सो द आंसर इज नो। एडिशन कैन नॉट बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन, रादर दे शुड बी बेस्ड ऑन एविडेंसेस। Addition on the basis of project report and valuation reports are not sustainable. डिपार्टमेंट को ये प्रूव करना होगा
कि एसएससी ने कोई ऑन अकाउंट ट्रांजेक्शन्स की हैं, अंडर द टेबल ट्रांजेक्शन्स की है, कैश इन्वॉल्व हुआ है, कहाँ से कैश गया, कहाँ से कैश आया. सो it is a burden on the department, just on the basis of the valuation reports and just on the basis of the project report, the additions under section 69 and the family of section 69, that is 69A, B, C, D, cannot be made. This is very clear, but it is very painful that at the assessment level and the CIT appeal level, these points are not taken care of the SSC. Whatever you have to say and whatever you have to prove at the ITAT level. This is a general practice. Now the next question is whether the doubt of the assessing officer can be the basis for rejecting the SSC claim or explanation. कई बार ऐसा होता है कि आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए और डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद असेसिंग ऑफिसर साहब को ये लग रहा है कि नहीं, आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है या कुछ प्रॉपर्टी में और कोई ट्रांजैक्शन की गई है, तो क्या एक खाली डाउट के बेसिस पर, कंजेशंस के बेसिस पर आपकी एडिशन किया जा सकता है? तो कोर्ट्स ने बहुत सारे जजमेंट्स में ये कहा है कि जब कभी भी असेसिंग ऑफिसर को डाउट हो तो या तो आप पूरी प्रॉपर इंक्वायरी करें, प्रॉपर इंक्वायरी करने के बाद अब एविडेंसेस कलेक्ट करें और एविडेंसेस के बिहाफ पर एसएससी की एडिशन करें. ओनली बिकॉज द सस्पिशन हैज अराइजन इन योर माइंड, प्लीज डू नॉट गो फॉर द एडिशंस in the sections. The next point I have already discussed. The point is that the year of the investment is very important. The year in which you have made the addition is very important. You cannot make the addition of the investments made in the earlier years into the later year. जिस साल की इन्वेस्टमेंट है उस साल में ही, क्योंकि पहले एक ब्लॉक असेसमेंट होता था सेक्शन 158 में, तो ब्लॉक असेसमेंट नहीं होता है, तो हर साल की अलग अलग असेसमेंट होती है. तो जिस साल का टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है, जिस साल का पेनल्टी का रेट एप्लीकेबल होता है, वही सारे जो है वो अप्लाई किए जाने चाहिए. नाउ नेक्स्ट पॉइंट कम्स एडिशन ऑन द स्टेटमेंट ऑफ थर्ड पार्टी. आज के टाइम में जो जितने नोटिस डिपार्टमेंट से असेसमेंट के लिए आते हैं, चाहे वो सेक्शन 148 के हैं या सर्च एंड सीजर की जो असेसमेंट सेक्शन 153 और सी में पहले होती थी, और कई बार नॉर्मल असेसमेंट में भी डिपार्टमेंट के पास डिपार्टमेंट स्टेटमेंट लेकर के बैठा होता है. जब एंट्री ऑपरेटर के यहाँ कोई सर्च होती है या किसी और ने भी हमारे स्टेटमेंट दे दिया, कई बार मैट्रिमोनियल झगड़े होते हैं, उनके अंदर डिपार्टमेंट को स्टेटमेंट मिल जाती है कि भाई इतना पैसा जो है वो शादी के अंदर इन्वेस्ट किया गया. तो क्या क्वेश्चन आता है कि क्या इन स्टेटमेंट्स के बेसिस पर खाली एडिशन किया जा सकता है? तो इस बारे में जो लॉ है वो ये है कि जिसने स्टेटमेंट दी है खाली वही उस स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी को बता सकता है. तो बिफोर रिलाइंग ऑन द स्टेटमेंट्स व्हिच हैव बीन रिकॉर्डेड एट द बैक ऑफ द एसएससी कैन नॉट बी रिलाइड बाय द डिपार्टमेंट for making the additions on the SSC without giving an opportunity to the SSC and without providing the copy of the statement of those statements to the SSC, and then after providing the copy of the statement to the SSC should be given a proper opportunity to cross examine. चाहे वो बोगस परचेजेस की हो, चाहे वो शेयर कैपिटल की हो, चाहे वो लोन एंट्री की हो, यदि डिपार्टमेंट के पास कोई स्टेटमेंट है, कोर्ट के न्यूमरस डिसीजंस हैं जो कि ये कहते हैं कि आप जब सेक्शन 148 का नोटिस भेजें तो सेक्शन 148 का नोटिस भेजने के साथ या एसएससी को रीजंस भेजने के वक्त आप सारे डॉक्यूमेंट्स को लगाएं, आप अप्रूवल की कॉपी दें, आप स्टेटमेंट की कॉपी दें. लेकिन लास्ट तक असेसमेंट का टाइम आ जाता है और एसएससी को इन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी नहीं मिलती, तो क्रॉस एग्जामिनेशन की तो एक बहुत दूर की बात है. सो इन एवरी असेसमेंट ऑर्डर मोर और लेस द प्रिंसिपल्स आर नॉट फॉलोड प्रॉपरली एंड
In the appeals, you can win the case if you have not been provided the copy of the statement and you have not been given the opportunity of the cross-examine. But before that, it is very essential that whenever you are giving replies in your assessment, then every reply, my point is that you write in this point ki whatever the statements you are relying as against the assessee, then please provide a copy at the earliest and give us the opportunity to rebut those statements. Admission by a person is a good evidence in his own case, but it is not sufficient and conclusive in the case of the other person. मैंने स्टेटमेंट दी, वो मैंने स्टेटमेंट दी, आप मेरी एडिशन कर सकते हो उसके बेसिस पे, लेकिन मेरे स्टेटमेंट के बेसिस पर आप दूसरे की एडिशन नहीं कर सकते. Next point comes investment in case of partnership firm. Addition cannot be made in the hands of the firm but in the hands of the partners. एक क्वेश्चन कई बार आता है कि पार्टनर्स ने यदि पार्टनरशिप फर्म के अंदर पैसा लगाया हुआ है तो उस केस में आप पार्टनरशिप की एडिशन करेंगे या पार्टनर्स का एडिशन करेंगे. तो इसमें केस लॉस क्लियर है और वहां पे एक आ गया है कि यदि आप एडिशन करना चाहते हैं तो यू डू द एडिशन इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर्स एंड नॉट इनटू द हैंड्स ऑफ द पार्टनरशिप व्हेन द investment is being made by the partners into the partnership firm. The next question is that valuation of stock decision. पहले क्या था कि बहुत सारे डिसीजंस ऐसे थे कि जब एसएससी बैंक से लोन लेता था तो एसएससी जो है वो स्टॉक स्टेटमेंट्स को फैब्रिकेट करके दिखाते थे और जब सर्च होती है तो वो फैब्रिकेटेड स्टेटमेंट मिलती थी तो उन फैब्रिकेटेड स्टेटमेंट के बेसिस पे एसएससी की एडिशन होती थी तो कोर्ट से छूट जाती थी. लेकिन कुछ रीजंस जजमेंट अब ऐसे आ रहे हैं जो एसएससी के डिसफेवर में आ रहे हैं कि बिकॉज द एसएससी इज डूइंग रॉन्ग बाय मेकिंग द डुप्लीकेट सेट ऑफ बुक्स कि आप बैंक को देने के लिए अलग स्टॉक बनाते हैं. तो कोर्ट्स का कहना है कि द एसएससी कैन नॉट बी लेफ्ट विद द स्कॉट फ्री. आप एसएससी जो है वो आप उसको छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो गलत कर रहा है. सो प्लीज बी केयरफुल व्हाइल whenever you are going to the statement into the bank, the stock statements. So if they are fluctuated, you can face the music of section 69. In the same way, I have already discussed in the case of cost of construction, if you are maintaining the proper books and you have the proper bills, then the whatever actual expenditure you have incurred, that will be your investment, and the valuation report cannot be considered under section 69 until and unless you have all the bills and vouchers. There is a basic difference in section 68 and 69. I have already explained. For section 68, there should be a credit entry into the books. And in section 69, there may not be an entry in the books of accounts. दोनों अपोजिट हैं क्योंकि सेक्शन 69 तो पहले ही बात ये कहता है कि आप में एडिशन तब होगा जब आपने उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, और सेक्शन 68 तब लगता है जब वो कहता है कि आपके बुक्स में कोई एंट्री है. तो दोनों जो है वो एक अलग अलग लाइंस पर चलते हैं, बट लेकिन जो असेसमेंट कराने के अपील्स के जो सिद्धांत हैं वो मोटे तौर पे दोनों में सेम है. नाउ अब बात आता है जब सेक्शन 68 और 69 के अंदर एडिशन हो गया तो सपोज करो कोई एसएससी अपनी रिटर्न ही नहीं भरता और उसके यहाँ 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट मिल गई, तो आप ये नहीं कह सकते साहब मुझे 5 लाख रुपए का स्लैब दे दो, आप एप्लीकेबल होगा 115 बीबीई लगेगा, 60% टैक्स देना पड़ेगा, 25% की सरचार्ज लगेगा और 10% की पेनल्टी तब लगेगी जब आपने उसको अपने रिटर्न में नहीं दिखाया होगा. तो जनरली सेक्शन 69 तो या 68 तभी लगता है जब एसएससी ने उसको कंसीडर नहीं किया होता. तो प्रैक्टिकली जो एसएससी के ऊपर जो बर्डन आता है वो काफी हैवी बर्डन 60% टैक्स का और 25% सरचार्ज का और 10% पेनल्टी का आता है. लास्ट पॉइंट जो मेरे पास सेक्शन 68 और 69 के लिए है वो ये है कि सेक्शन 68 और 69 एक डीमिंग प्रोविजन है. डीमिंग प्रोविजंस को बहुत स्ट्रिक्टली कंस्ट्रू नहीं किया जाना चाहिए. ये बहुत इट इज लाइक रनिंग ऑन ए नाइफ. एसएससी जो है वो बिल्कुल पॉइंट पर होता है, तो दिस शुड बी यूज्ड वेरी स्पेयरिंगली, बट in actual practice the department is using it like nothing. Every second addition is being made under section 68 and a heavy demand is created. So my suggestion, my humble suggestion for all the assessees and professionals is that whenever you are dealing with the cases, then give maximum documents at the time of the assessment.
Do not take the assessment lightly. Do not go for the last time कि हम अब वो टाइम चले गए जब असेसमेंट में हम ये सोचते थे कि हम जितनी बाद में पेपर देंगे असेसिंग ऑफिसर के पास कम टाइम होगा, क्योंकि अब तो आपने पहले दे दिया या बाद में दे दिया, उन्होंने देखना नहीं है. तो बट यू हैव टू गिव द डॉक्यूमेंट्स. द मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन शुड बी गिवन एट द टाइम ऑफ द असेसमेंट. दिस इज फ्रॉम माय साइड. नाउ you can ask your queries. Malvia, from my side, I have done. Okay, sir, we have few questions in our comment box. The first one is from Megha Kalraji. He is asking if books of accounts not produced before learned AO and accordingly he rejects books. AO made addition under section 68 on cash deposits in bank account. Is this case whether section 68 applicable or section 69A? If books of accounts not produced before learned AO and accordingly he rejects books. यदि उसने बुक्स रिजेक्ट कर दिया तो बुक्स रिजेक्ट के केस में तो यदि बुक्स ही नहीं है तो बुक्स इफ एनीथिंग इज रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स तो पहली कंडीशन तो सेक्शन 68 है ही नहीं. अब बात आता है कि आपने जो क्वेश्चन लिखा वो क्वेरी के अंदर ये नहीं लिखा कि 16 आपका अमाउंट कौन से थे जिनके पीछे वो एडिशन करने जा रहा है. तो 68 के अंदर तो वो एडिशन नहीं कर सकता क्योंकि आपकी बुक्स ही उसने रिजेक्ट कर दी. नाउ कोई ऐसा अमाउंट है जो कि सब्सटेंशिएट होता है तो वो सेक्शन 69 के अंदर एडिशन कर सकता है यदि आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिए. Yes, next question we have from Basant Kumar Mehta. He is asking, due to inflation limit for cash transactions should be increased. Please enlighten on the same. Basant ji, it is a policy decision. So what can be done or what cannot be done, it is the point of the government. So I cannot comment on this. Yes, you are right. The limit should be increased. The next question we have from Mohapatra ji. He is asking, sir, please explain where unexplained cash credit is found in the firm's books credited in the name of a partner, then whose income it may be added and under which section? ये पार्टनर के नाम में सेक्शन 68 में. 69 में उसको डिपार्टमेंट ले जाएगा क्योंकि पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट किया है. पार्टनर के हाथ में एडिशन होना चाहिए सेक्शन 69 में. Next question we have from GS Ahuja ji. He is asking, talking of Mayawati case, if there is a credit in bank but that entry is not put in my books, then what happens? डिपार्टमेंट उसको 69 में कर देगा सर, 68 में नहीं कर सकता. Next question we have again from Megha Kalra ji. She is asking, a rate of 60% section 115 BBE came on 15 December 2016. Whether it is applicable from 1st April 2016 or from 1st April 2017. If from 1st April 16, is there any judgment in favor that new rate should be applicable prospectively? मेगा इसमें एक केस वाटिका टाउनशिप का है. आई विल कंफर्म यू द केस. मोस्ट प्रोबेबली वाटिका टाउनशिप है. बिल्कुल लॉ इसमें क्लियर है कि ये बाद में पॉइंट्स रेज होंगे. इसमें अंदर एक जजमेंट में ये कहा गया था कि जब कभी भी कोई कानून लाया जाता है, जैसे बजट आता है तो फरवरी में बजट आता है और वो आप 1 अप्रैल से लागू होता है. तो 2 केट के जजमेंट्स हैं. एक मोस्ट प्रोबेबली वाटिका टाउनशिप है. आई विल गिव यू द जजमेंट जिसके अंदर कोर्ट ये कहती है कि यदि आप साल के दौरान यदि कोई चेंज लाए हैं तो आप उसको वो नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल से लागू होगा. तो ये जो अमेंडमेंट लाई गई थी ये उन दोनों सुप्रीम कोर्ट के केसेस के बिल्कुल ताक पे रख के लाई गई थी. तो आई विल गिव यू बोथ द डिसीजंस. मेगा यू कैन नोट माय नंबर फ्रॉम मालविया. मालविया आई विल गिव द वन इज वाटिका टाउनशिप आई थिंक. बट वो एप्लीकेबल गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2016 से किए हैं, लेकिन एज पर माई नॉलेज दैट शुड बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2017. या Okay, so that's all the queries we have. Okay, so thank you so much, sir, for such a wonderful and knowledgeable session with us. So now we can wind up or any query? Shall I share your number I will with share the with audience? you. 9811
Just a minute, sir. Yes, Should I 9811 write in the private comment? 29 29 1390. 1390. It's 1390. 9811 29 1390. I'll share it with the audience. Yeah. I will share you with both the PPT in which all the details are there. So on the same email ID on which you have send me the link, I will share both the PPTs. Okay, sir. Okay, So Malvi, thank it you is so over now. Should I? Yes, sir. Thank you so Thank you. much. And I would also like to thank our guest of honor, CA Dinesh Kumar Khandelwal ji, for joining us. And thank you all the viewers for your patient hearing. Thank you all. Thank you, sir. Thank you, Malvi. Thank you.